A wicket of the last ball before rain stopped play early. Northern can count themselves unlucky after losing their last game against Sindh. But they look well placed in the hunt for a semi-final spot. And with the likes of Haider Ali, Mohammad Nawaz and Asif Ali in good touch, they are a formidable outfit. That is an outstanding catch. Today they will have their task cut out. Led by Rizwan, their rivals Khyber Pakhtunkhwa are going from strength to strength. Their last game against Balochistan saw them put on this year's highest score of 202. My goodness, that's an outstanding shot. That is magnificent stuff. With the bowlers proving lethal, KB registered a big 55-run win and now are at the top of the table. गुड आफ्टरनून और सभी को वेलकम। खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न आमना सामना करेंगे इस मैच में जो कि है 17th मैच ओसाका बैटरीज प्रेजेंट्स पेप्सी नेशनल T20 का लाइव फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं हम। ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हो गए। तमाम टीमें 5-5 मैच खेल ही चुकी हैं और इस वक्त जो टीमें मुकाबले में हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा नंबर 1 पे। नॉर्दर्न की पोजीशन है 4। Welcome to the show and welcome from the Rawalpindi Cricket Stadium. I've got Mike Hisman alongside me. I don't know what's happening as we're getting to the end of the year. It just seems to be getting hotter and hotter. What's going on? I mean, it's steamy, isn't it? Sort of almost coming from the ground. I mean, apparently it rained till about 3 o'clock in the morning last night again. So heavy rain, which obviously shortened the evening last night, and then lots of rain, a team down at one stage. And I guess this is all the moisture coming out of the ground now. That the covers are on, and the ground staff again have done a great job. So well done to them. It's kept them busy. Speaking of rain, now what we've seen is action replay. 2 matches back-to-back being washed out, abandoned, DLS coming into play, and 2 wickets falling just before the first drop in each game. Probably they're trying to get to that par score and losing a wicket and going further down. What an error from Nawaz the other day. I mean, that was crazy. I mean, literally the ball before that, they were okay, they were ahead, and then suddenly he got out and it was straight down the fielder's throat, and then suddenly they'd lost. And if you look at that table, I mean, they are sitting at the 4th spot at the moment, and KP are number 1, but 4th spot by only a very small margin if you look at the net run rate. So it cost them with points and also cost them on the net run rate as well. So it's disappointing for them. They've got to pick up the game. I quite like them, you know, Northern. I quite like them. They've got a very good power play. They batting power play. They're top of the pops when it comes to that. And they've hit the most sixes as well. So it's a pretty good power hitting lineup too. So I quite like the way they go about it. And I've always liked KP. So I think that's a good game, this one. All right. Sun is beating down. Let's find out from Marina Iqbal how the pitch is going to be. A very sunny afternoon here with temperature around 33 degrees, and I'm here at the middle with the strip for today's match. So let's have a closer look. This pitch has been used for 2 matches. Around about 600 runs have been scored, 170 being chased. But if we have a closer look, you can see that they have spread a bit of grass and rolled it, and definitely there was some rain in the late night. So I feel that there is a possibility that there will be some sort of moisture underneath this wicket. But if I talk about batting, I think the batters who will play closer to their body will enjoy their stroke play. And for bowlers, I think spinners might get a bit of help because initially I feel that it will grip. But mainly the escape gate for bowlers will be to hit the right length and most importantly, take wickets. So I suggest win the toss, go, ball, restrict the opposition and do a calculated chase. It's been the talk that the ball seems to be gripping a little bit earlier on and then so on. You saw what Shoaib Malik did yesterday. It's available. Runs are there. They are, but I saw something I've never seen before during a game. Now, the ground staff lightly watered in between the 2 games. They lightly watered the pitch we're playing on today, just to freshen it up. When I say lightly watered, I mean just a spray. But then it also rained later, so it was still dry enough to roll it, which they wanted to do. So they just wanted to breathe a bit of life in it, which is unusual in my mind. But I mean, obviously they've done it before, so good luck to them, and that's how they do it. And it's high skill, I think, for ground staff to be able to do that. I just wonder with the rain later and the covers coming on, maybe a little bit extra moisture might have been caught there. The covers have been off since early this morning, so I think whatever's there has obviously come out now. But who knows? Maybe it might stop a little bit, and that it will play a part early with a bit of luck.
Well, then let's find out what the captains feel about it. Bazil Khan is out there. Bright and sunny today. Nobody would know that it rained all last night. Perfect conditions, and we're all ready for the toss. So we've got Rizwan, Shadab, match referee Professor Anis. I think Rizwan has the coin. Heads. Heads is the call. Heads is the call. It's tail, so Rizwan has won the toss. Rizwan, क्या करेंगे और क्यों? बॉलिंग करेंगे और कोई ख़ास वजह है नहीं, जिस तरह आपको पता है टास्क पे कभी बिलीव नहीं किया, बस इस तरह स्ट्रेंथ देख रहे हैं उसी की डिसीजन कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स में आप मानते नहीं हैं, लेकिन नॉर्दर्न को कभी खैबर पख्तूनख्वा ने हराया नहीं। देखिए जी, ऑलवेज उनकी तगड़ी टीम होती है माशाल्लाह, और मैच क्रूशल मतलब ऐसा मैच होता है जो बहुत मज़े वाला मैच होता है, और हम भी डिमांड चाहते हैं कि मैच तगड़ा हो। बाकी आज हर मैच इस नियत से आते हैं कि उनको हराए इंशाल्लाह। आज उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह तोड़ देंगे इंशाल्लाह। शादाब, ये बताया कि पिछला मैच वो डीएलएस पे हारे, कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिल्कुल आखिर में जाके हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजिद भाई, बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है और सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी, क्योंकि लास्ट बॉल पे अगर आउट ना होता तो हम जीत जाते, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम खेल रही है यूनिट बन के, तो खुशी होती है, और जिस तरह की एफर्ट हो रही है तो आप एफर्ट ही कर सकते हैं, रिजल्ट तो आपके हाथ में होते ही नहीं। मुकाबले की आपने बात की, नॉर्दर्न की जो बैटिंग है वो पहले बॉल से आखिरी बॉल तक अटैक करती है, तो इसके काउंटर करने के लिए आपके पास प्लान्स हैं? दिल को वजीर भाई, ऐसा है मेरे ख्याल से कि अगर आप किसी भी टीम के आप ओपनर्स देख ले तो माशाल्लाह तगड़े ओपनर हमारे पाकिस्तान के रिसेंटली जितने भी है, और इनकी एक अच्छी बैटिंग साइड भी है, तो ये है कि इसीलिए हमने थोड़ा सा प्लान किया हुआ है। अब यहाँ भी डिस्कस नहीं कर सकते, कोशिश कर एग्जीक्यूट करें ग्राउंड में इंशाल्लाह। जवाब तो कोई देते नहीं है। शादाब, ये बताएं कि आपकी टीम जिस तरह खेलती है, ये फॉर्मेट आपने काफ़ी देर से चलाया हुआ है और इसी तरह आप हर मैच ऑलमोस्ट खेलते हैं, तो प्रिपरेशन में यही बात होती है कि हर बॉल पे अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है? जी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आप डिमांड हो गई क्रिकेट की, आप एग्रेसिव क्रिकेट की डिमांड हो गई मॉडर्न डे में, तो आप क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इधर प्रिपेयर होंगे, इस तरह खेलते रहेंगे तो इंटरनेशनल में भी हमें फ़ायदा होगा। तो हमारी कोशिश वही है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वर्ल्ड कप के लिए, और एज ए टीम भी हम उस तरह खेलते हैं कि अगर हमारे से इंशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए जाएंगे तो वो इस क्रिकेट से खेल चुके हों, ताकि उधर जाकर उनको फ़ायदा हो। जब आप टीममेट्स एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो कुछ ज़्यादा मुकाबला होता है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि जब आप दो से एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो ज़्यादा टसल वाले मैचेस होते हैं, और क्योंकि अगर आप एक दूसरे को आउट करते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है, और वापस जाके उसका मज़ा भी लेते हैं। चले, आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी, हमारी 3 चेंजेस हैं। मूसा की जगह सुहेल भाई वापस आए हैं, मैडी भाई की जगह उमर अमीन वापस आए हैं, और सरमा हमीद की जगह अली इमरान। 3 चेंजेस। रिजवान, आपकी टीम में कोई सेम टीम। Same team. So the news out here is that Khyber Pakhtunkhwa have won the toss and have elected to bowl. 3 changes for Northern, and just have a look at there. Ali Imran, he should have been there earlier on. He's a good all-rounder, top order bat. Umar Amin gets a turn again in the 11, and Sohail Tanveer also comes back. Always a bit of solid stuff when Tanveer's back in the lineup. Always like that, and he's pretty keen to set a trend. He hasn't always got it right so far in this edition, but he's a class act, and I expect him to set the trend quite nicely for Northern. It's not a bad lineup, that. KP goes as they were. They've been winning with this unit, so they don't want to make any changes. And this is what the 11 looks like. And also the captain, Rizwan, said that bowling is their strength, and he's dead right. And I think that this is a pretty good toss to win. I think this is not going to be a flat track, particularly at the start. When the ball gets a bit older, it's going to be easier. But I think initially it might be a little bit testing for the batsman. A quick one, we're just looking at Northern squad. They've got 4 bowlers who are part of the World Cup squad. You think they're getting tested enough? Because there'll be similar conditions with spin having a lot of say there. Yeah, look, it's going to be quite different in the UAE. I mean, Sharjah turns like a top, we know that, and obviously Dubai and Abu Dhabi. I mean, there's a bit of purchase there as well. I think the most important thing going into a T20 event, being the shortest format, is confidence in their own ability. So if they're performing themselves, that's good. So the bowlers are got their net run rate okay, their runs per over okay, and the batsmen scoring runs, that's fine. If they're performing as individuals, they're okay. All right. Action is coming your way. KP is bowling. Let's enjoy.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं, जहां पर आज बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है। ये आपके सामने बैटिंग करेगी नॉर्दर्न की टीम। नासिर नवाज इनिंग्स का आगाज करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि 14 मैचेस में 237 रन बनाए हुए हैं, लेकिन खासे कम उम्र हैं। ये अच्छे बैट्समैन हैं, इन स्टैट्स की निस्बत ये कहीं बेहतर बैटर हैं। अली इमरान, इनको आज पहला मौका मिला है। ये बड़े टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग करते हैं। नई गेंद के अलावा, नई गेंद पर बैटिंग करने के अलावा नई गेंद खुद भी करना जानते हैं। 65 इनका बेहतरीन स्कोर है, जो इन्होंने फैसलाबाद में बनाया था अब से 2 बरस पहले। लेकिन इनको चैलेंज बड़ा सख्त दरपेश है। शाहीन अफरीदी, जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं, इनका सामना करना होगा। मेरे साथ मरीना इकबाल हैं कमेंट्री बॉक्स में, इन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया तारिक। और एक अच्छा मैच आज नॉर्दर्न का सामना है केपी से। केपी ने दावत दी है नॉर्दर्न को बैटिंग के लिए। गो के रिजवान जो है वो टॉस को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फर्क जरूर डालता है। आज चेस करने की ऑप्शन इन्होंने अडॉप्ट की, और कल बारिश भी होती रही है, तो देखते हैं कि क्या बॉलर्स को हेल्प मिलती है। जी हाँ, नई गेंद पर मदद मौजूद थी, खासतौर पर कल जो पहला मैच खेला गया था उसमें मूवमेंट मिली थी। वहाँ बलूचिस्तान की इब्तदाई बॉलर्स को। तो एक स्लिप के साथ पहली गेंद शाहीन शाह अफरीदी की पवेलियन एंड से सॉरी स्विंग करने की कोशिश की। एक रन इनसाइड एज पर हासिल किया नासिर नवाज ने। शाहीन अफरीदी पिछले मैच में कदरे बुझे लगे थे। खुरम मंजूर के सामने जो इनका ओवर था खासा महंगा रहा, 5 बाउंड्रीज लगी, लेकिन वो एक बुरा दिन था। आमतौर पर इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं वो इस तरह के दिन उनके करियर में कम ही आते हैं। खुरम मंजूर को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया था शाहीन शाह को, और अच्छी क्रिकेट थी ओवरऑल। जाहिर है शाहीन शाह को भी अभी भी काफ़ी कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीख के अभी इस कम उम्री में उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया है वो काबिल ज़िक्र है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप पे अटैक किया जाता है और आपको नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अच्छा यॉर्कर, और एलबीडब्ल्यू। गेंद सीधी जाकर पैड पे लगी और अपना तवाजुन खो बैठे अली इमरान। तवील कामत हैं, कई बार झुकने में मुश्किल पेश आती है आपको इनिंग्स के शुरू में। आगे बॉल पिच करते हैं शाहीन। स्विंग मिल रहा था, उसका फायदा उठाया और बिल्कुल ही अपना तवाजुन खो दिया अली इमरान ने। आज मौका मिला था लेकिन बदकिस्मत रहे। और शाहीन शाह अफरीदी जो अभी तक इस टूर्नामेंट के अभी तक के विकेट टेकर में सहरे फहरिस्त हैं, उनका पहला शिकार। कोई स्कोर बनाए बगैर नॉर्दर्न 1 पे 1। हैदर अली पहुंच गए हैं मैदान में, जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाई रन चेस करते हुए दबाव में। वो बड़ी शानदार इनिंग्स थी टूर्नामेंट की, बिलाशुबा वो बेहतरीन इनिंग्स। 1000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हुए हैं। स्ट्राइक रेट इनका बेहतर हुआ है, ख़ास तौर पर जिन दिनों ये पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, तो इन्हें मिडिल ऑर्डर में आजमाया गया। हालांकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। फिर इन स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ द पैड गई थी।
इसलिए अपील पर ज्यादा कान नहीं धरा। शाहीन अफरीदी इससे पहले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट कर सके थे नई गेंद पर, और ये तीसरी विकेट है। क्या गेंद स्टंप्स की लाइन में गिरी थी? जी हाँ, तो पावर प्ले में ये तीसरी कामयाबी है इस नेशनल T20 कप में। यकीनी तौर पर लेग स्टंप को जा हिट करती। एक दिन के आराम के बाद खासे तरोताजा लगे शाहीन अफरीदी। बॉल्ड कर दिया। एक ही विकेट पर इक्तिफा नहीं किया शाहीन अफरीदी ने। हैदर आए, हैदर गए, और नॉर्दर्न का बड़ा तबाहकुन आगाज इस अहम मैच में। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस बॉल को निगेट करने में नाकाम रहता। परफेक्ट लेंथ थी, परफेक्ट लाइन थी, अंदर आया अच्छा बॉल और बिल्कुल डिफेंसेस को बीट कर दिया हैदर अली के। और ये हैं शाहीन शाह अफरीदी आपके लिए। जी हाँ, ये वो शाहीन शाह हैं जिन्हें हम जानते हैं। हैदर अली ने भी स्कोरर्स को जहमत नहीं दी अली की तरफ। 1 पर 2 नॉर्दर्न। ठीक है, परफेक्ट। बैट्समैन इन, बैट्समैन इन। बाएं हाथ से खेलने वाले उमर अमीन आए हैं, लेकिन ये बाएं हाथ के बैटर्स के लिए अच्छी सेपहर साबित नहीं हुई। शाहीन अफरीदी ने जो मुसलसल स्विंग बॉलिंग की है उस पर 2 विकेटें गिरी, और उमर अमीन ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि पहले ओवर में उनको बैटिंग के लिए पहुंचना पड़ेगा। काफी अरसे से खेल रहे हैं। औसत इसको इनका जो बेहतरीन स्कोर है 82 है। हालांकि खेलते ज्यादातर पहली 3 पोजीशंस में रहे हैं, तो आप तवक्को करते हैं कि सेंचुरी होनी चाहिए। तीन स्लिप्स के साथ शाहीन अफरीदी। विकेटें 2 गिरी, यके बाद दीगरे। शाहीन अफरीदी, ये देखिए हैदर अली लूज शॉट खेला इन्होंने। गेंद इन स्विंग जरूर हुई, लेकिन बैट और पैड साथ मिलाकर आप खेल सकते थे, खास तौर पर इतने मोतबर बॉलर के सामने। पहला गेंद फेस कर रहे थे और ड्राइव करने चले गए और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन शानदार डिलीवरी थी, जैसे टारगेट बॉलिंग होती है वो लाइन और वो लेंथ थी शाहीन की जानिब से। अच्छा सिंगल पिंच किया, आसिफ अफरीदी थे, लेकिन उमर अमीन ऑफ द मार्क हो गए और शाहीन अफरीदी बहुत जल्दी ऑफ द मार्क हुए। उनने 2 विकेटें इस ओवर में हासिल की और सिर्फ 2 रन दिए। तीन तब्दीलियां लाई गई हैं नॉर्दर्न की टीम में। अली इमरान, उमर अमीन और सुहेल तनवीर को खेलने का मौका मिला है, जबकि सरमद हमीद ड्रॉप हुए, इमाद वसीम को आराम दिया गया, मोहम्मद मूसा भी ड्रॉप हो गए, सुहेल तनवीर उनकी जगह पर खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो ज़्यादा सेटल है, ये कम तब्दीलियां करते हैं अपनी लाइनअप में, यही इनकी जीत का भी राज है। लेफ्ट हैंडर के लिए इस बार मूवमेंट नजर आई, लेकिन गेंद पैड के ऊपरी हिस्से पर टकराई थी उमर के।
अच्छा स्टार्ट इमरान खान जूनियर की जानिब से, लेकिन ये वो स्टार्ट है, ड्रीम स्टार्ट एक बॉलर के लिए। स्विंग मिल रहा था, आगे पिच किया और ये प्राइज विकेट। हैदर अली फॉर्म में थे, लेकिन शाहीन शाह उनसे ज्यादा तगड़ी फॉर्म में। यहाँ पर जब इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था तो इसी तरह का तबाहकुन स्पेल किया था। फजल महमूद का रिकॉर्ड तोड़ा था फर्स्ट क्लास डेब्यू पर। एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के बॉलर ठहरे थे। 8 विकेट लेकर शाहीन। इसलिए रास आता है इनको ये मैदान। एक ज़माने में जब वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए खेला करते थे 80 और 90 की दहाई में, तो ख़ास तौर पर जिस ज़माने में वो पूरे जोबन पर थे, तो हमेशा ये उम्मीद लगी रहती थी कि वो पहले या दूसरे ओवर में विकेट लेंगे, और होता था अक्सर। और वो इन स्विंग पर ही विकेटें लेते थे राइट हैंडर के खिलाफ नई गेंद पे। टॉप पे शाहीन शाह अफरीदी, 12 विकेटें ली हैं अभी तक इन मैचेस में, इस टूर्नामेंट में। और आज जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं, स्विंग मिल रहा है, रिदम अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है, यही इनकी खासियत रही है। अभी ये जो फहरिस्त हमने देखी सरकर्दा बॉलर्स की, इसमें नाम इमरान खान का नहीं है, लेकिन कम विकेटें लेने के बावजूद ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते आए हैं। सिर्फ एक आध दिन ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन T20 क्रिकेट में इस साल अगर कुछ सबसे बेहतर बॉलर लगा है या सबसे इम्प्रूव्ड हमने देखा पेसर, तो वो इमरान खान सीनियर है। 6 मैचों में 8 विकेटें, लेकिन इकॉनमी भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये PSL में इनकी काया पलट हुई थी। और शानदार डिलीवरी, इस बार कॉट बिहाइंड की अपील की, और शायद LBW की भी। ये दो तरह से मांग की थी। इनिशियली लग रहा था कि LBW के लिए जा रहे हैं, उसके बाद शायद कीपर ने कॉट बिहाइंड के लिए सवाल उठाया था। नजर डालते हैं, अच्छी सीम पोजीशन है, पढ़ के अंदर आया और पिछली टांग पे खाया है। क्लोज मामला लग रहा था, लेकिन अंपायर का ख्याल दूसरी तरह। यहाँ गेंद क्योंकि उछलती है और उसी बाउंस की वजह से अंपायर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। जब तक गेंद आप शाहीन अफरीदी की तरह आगे नहीं गिराएंगे तो LBW हासिल करना आसान नहीं होता, ख़ुसूसन जब नई गेंद फास्ट बॉलर के हाथ में हो। इमरान खान सीनियर की बात कर रहे थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ जो रही है वो बात करते हैं उस पर। फिलहाल ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं और शानदार इनामात जीत सकते हैं जस्ट फॉर मेन की जानिब से। इमरान खान की बात कर रहे थे, उनको पता है कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं, और वो उसी पे काम करते हैं। और जैसे बैटिंग में एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, KP के लिए ये दोनों बॉलर्स जो हैं वो पार्टनरशिप लगाते हैं। स्ट्राइक बॉलर हैं शाहीन, और ये इकॉनमी के लिहाज से इमरान खान बहुत अच्छे रहे हैं। एक मरतबा फिर बड़ी शानदार डिलीवरी, अपने बॉडी से दूर खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद तवक्को के बरक्स अंदर को आई। मेडन ओवर रहा इमरान खान सीनियर का, 2 पर 2। आसिफ अली, रुहेल नज़ीर, शादाब खान, नवाज, काफ़ी लंबी बैटिंग है। इमाद वसीम आई नहीं है, ऑलराउंडर्स की भरमार है इस टीम में।
बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी, जिनने बड़े कम अरसे में अपना लोहा मनवाया है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड गए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और मोहम्मद मूसा इनके साथ थे। अरशद इकबाल भी उसी पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है जितनी तेज़ी से इन्होंने खुद को तस्लीम कराया। आसिफ अफरीदी गेंद को बर वक्त हाथ में ले नहीं सके। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये वो खूबी है इनकी, गेंद को आगे गिराया, इस बार मूवमेंट मिली। हैदर अली सहल पसंदी का शिकार हुए और पिछले मैच में क्योंकि 91 रन की इनिंग्स खेली थी और अक्सर देखा गया कि बैट्समैन जो है उसको लगता है कि मैं अपनी इनिंग्स वही दोबारा शुरू कर रहा हूं। हैदर अली वही गलती कर बैठे, वो जो सोच की गलती है, क्योंकि हर बार आप सिफर से शुरू करते हैं। रीड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पिच क्या कर रही है उस दिन, क्या कंडीशंस हैं, बॉलर आपके सामने कौन सा है, कौन सी शॉट उसको ऑफर करनी है, कौन सी नहीं। और देख लिया था कि स्विंग मिल रहा है और शाहीन शाह अफरीदी हमेशा अच्छी लेंथ हिट करते हैं, यही उनकी खासियत रही है, रिस्ट ला के मारते हैं। हैदर अली जो कि अभी टॉप स्कोरर्स में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन जैसे आपने बात की थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट शॉट वो था, अटैक करने चले गए थे, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ कई बार ये हो चुका है कि बैट्समैन एक मैच में सेंचुरी बनाता है और अगले मैच में वो पहुंचते ही आउट हो जाता है, ख्याल या दूसरी इनिंग्स में वो सिफर पर आउट हो जाता है। तो उसकी ज़्यादा वजह यही होती है कि लगता है कि आप वही इनिंग्स जो है उसको लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नया होता है इस खेल में, एक नई कहानी सामने आती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि किताब, ज़िंदगी जो है किताब की जानिब है, हर रोज़ एक सफ़े की तरह फाड़ के अगले दिन आपको नया इब्तिदा करना पड़ता है। बैटिंग भी कुछ ऐसी है और क्रिकेट ओवरऑल ऐसी है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे आज शाहीन शाह अफरीदी का दिन ऐसा नहीं। टपाल टी मोमेंट या पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में यॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन लाइन से हट गए शाहीन अफरीदी। थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अच्छी शेप आ रही है इनकी बॉल पे, तो जो अभी तक अच्छा हो रहा था उसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा इन्हें। लेंथ अच्छी हिट करते रहें तो मुश्किल होगी उमर अमीन के लिए भी। अभी तक सिर्फ 3 रन आए हैं इस ओवर में, क्योंकि ज़्यादा 2 ही ओवर्स करते हैं पावर प्ले में, तो इनकी कोशिश होती है कि पूरी जानो तन से बॉलिंग की जाए। गेंद पीछे गिरी थी, इसलिए एलबीडब्ल्यू का इम्कान नहीं, उसी बाउंस की वजह से अंपायर ने फैसला शाहीन के हक में दिया नहीं। ये बेहतर लाइन थी और लेंथ भी, जो नैगिंग लेंथ होती है वो थी, बिल्कुल लग रहा था कि हाइट, और पॉसिबल था कि शायद डाउन द लेग भी जा सकता था। किस्मत आजमा रहे हैं अपने शाहीन शाह अफरीदी, और फिलहाल नॉर्दर्न के बैटर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। बल्ले सिर्फ एक ही रन इस ओवर में बन सका है, 2 स्लिप्स मौजूद हैं उमर अमीन के लिए। हवा में खेला और मुश्किल फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। पेस का इस्तेमाल किया, चौके पर इख्तिताम किया उमर अमीन ने इस तीसरे ओवर का 9 पर 2।
ये नॉर्दर्न की टीम जिसको खासी तागोदो करना पड़ेगी, क्योंकि सामने उनके एक ऐसा हरीफ है, गोके इससे पहले ये कभी हारे नहीं है केपी के हाथों, लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म में है खैबर पख्तूनख्वा की टीम, और वो वाकई एक चैंपियंस की तरह ही खेल रहे हैं। ये वाइड करार पाएगी, क्योंकि आगाज अच्छा नहीं हो सका, और T20 में जब एक बार आप पटरी से उतर जाए तो फिर मुश्किल होता है वापस आना। ये शाहीन शाह अफरीदी के ओवर की आखिरी बॉल थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी, एक्सेप्शनल कैच हो सकता था। आदिल अमीन ने फुल डाइव की थी अपने बाएं जानिब, लेकिन 4 रन हासिल करने में खुशकिस्मत रहे उमर अमीन। मतला जब साफ हो चुका है, आसमान का रंग बदला है, और इस खिजां के मौसम में जब मौसम बदलता है तो आपका लंबे सफर पर जाने को जी करता है। नॉर्दर्न के इन बैट्समैन को भी लंबे सफर पर जाना होगा अगर उन्हें मुकाबला करना है उमर अमीन और नासिर ने। परिंदों का भी मूड बदल जाता है। आपका कहाँ दिल कर रहा है लंबे सफर पे जाने का? जनूब की तरफ, जनूब मशरिक की तरफ। अच्छा डिफ्लेक्ट किया, फील्डर वाइड खड़े हुए हैं स्क्वायर के पीछे, लेकिन पहुंच गए इमरान। क्रिकेटर्स का ये फेवरेट नाम है इमरान खान सीनियर। मोहम्मद इमरान बाउंड्री लाइन पर थे, मोहम्मद इमरान रंधावा खेल रहे हैं सदर्न पंजाब के लिए। जिस तरह हॉकी में शहबाज से एक जमाने में, जहां और क्रिकेट की दुनिया के जो सबसे मशहूर ऑलराउंडर थे, सबसे मशहूर इमरान खान। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। वो रावलपिंडी में ही टेस्ट मैच देखने के लिए आए थे 1964-65 में। वो सिर्फ 12 बरस की उम्र में पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच देखा था, और इसी से ही उनको शौक पैदा हुआ था खेल से वाबस्तगी का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ था पिंडी क्लब ग्राउंड में। इमरान खान ने अपना जो आखिरी इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला था वो इसी पिंडी स्टेडियम में 1991 में। सही तरह टाइम नहीं कर सके उमर अमीन। ये देखिए इमरान खान के नाम से मंसूब वो इनक्लोजर है, और पाकिस्तान के अरसा दराज कप्तान रहे, सबसे लंबे अरसे तक इन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की। तो 1991 में जब पाकिस्तान और श्रीलंका का यहाँ पर मैच हुआ था, वो पहला इंटरनेशनल था पिंडी के इस स्टेडियम में। इमरान खान का आखिरी इंटरनेशनल था पाकिस्तान में 1991-92 के सीज़न में। इंज़िमामुल हक और सलीम मलिक ने सेंचुरी बनाई थी उस मैच में। वैसे हवा में खेला, गेंद खासी दूर गिरी शाहीन अफरीदी से और वहीं प्लग हो गई, क्योंकि आउटफील्ड जो है ज़्यादा तेज़ नहीं बारिशों के सबब। थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो केपी की जो गिरफ्त है वो मजबूत होती जाएगी। पावर प्ले अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा है नॉर्दर्न का, जो हाईएस्ट बना पाए हैं वो 27 ही थे। चांस लिया था उमर अमीन ने, और लेकिन लेंथ ऐसी नहीं थी कि इसको अच्छा कनेक्ट कर पाते, और बारिश के बायस आउटफील्ड भी उस तरह फास्ट नहीं है जो हमें देखने को मिली थी।
शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। 2 ओवर्स में सिर्फ 4 ही रन्स इमरान खान सीनियर ने दिए हैं। 4 के बाद 13 पर 2 नॉर्दर्न। I tell you what, for a team that's got the best run rate in the power play, they've been shut down, going at 3.25 at the moment. Northern. So far in this edition, they've been going at 8.56. So there's an indication of how quiet they've been. And that too against a team who has never won against them. KP was never won against Northern, but has really done well in these 4 overs. And so has Shaheen Afridi. He's done superbly. A couple of overs at the top, a couple of wickets as well. Brilliant stuff. Always nice to see your premier fast bowler doing some damage in the power play. I don't think there would have been any discussion about whether he should continue on one more. They've got to save him for overs of the death. So let's have a look at those wickets in case you're just joining us. We want to check them again. That was LBW, that's in front. This next one was an absolute beauty. That's a great delivery. Not the best of shots first up, it's got to be said. Lovely swing. That's what you've got to do. Take advantage of any swing with that new kookaburra. Now that's just a bit of a... I'm not sure what that was actually, but it's got 6 in the end, but that's a rash shot. That's my best description. And with the shots, it's all just about a bit of courage. They needed some runs. He just heaved it away and was lucky this time. Fortune favoring him, but not the best of shots. Yeah, I'm not going. Yeah, I'm saying that's pretty ordinary cricket actually. The last thing they wanted to be was 3 down for 19. Iqbal into the attack. Went for 6 runs, but 3 for 19 would have had him in all sorts of trouble. Yeah, 3 for 13 actually it would have been. That would have been disastrous. 1 ball into the 5th over, so that's a pretty ordinary shot. Maybe it's a few nerves. Maybe he just wants to get that out of the system, who knows, but he survived. I guess that's the important thing as far as Northern's concerned. Yes, at the moment they are in all sorts of trouble. Runs not flowing their way, wickets going down, and especially the wicket of Haider Ali. And he was up against the leading wicket taker, Shaheen Afridi. So a lot now depends on Omar Amin and Nasir Nawaz. And their problems continue with this, even though the net run rate is very impressive, and as I said, the best of all the teams, their problems continue with their not getting a 50 stand at the top. That helps teams. They're the only side that hasn't got. That's a short single. And that would have been out, I'm sure, had there been connection. 1 stump to aim at, but he was pretty close. And look at that. Tried to play it with the soft hands, went for the single, but he had ground to make, and Adil Amin had 1 stump to aim at. And if it would have hit, it would have been curtains for Omar Amin. Well, this is interesting cricket from these 2 guys in this over so far. And that's the way they have played, and that's why just a 27-run opening partnership that you were talking about haven't crossed that mark yet, because even though when they're losing wicket, they just want to keep going. Shadab made a comment at the toss, which I'll refer to. Now they've gone the paddle over the top of the keeper. Little scoop shot. 4 runs with that one. And with the struggles continue, now they are going for those innovative shots.
in the end executed well. 4 runs of Arshad Khan this time. Shadab said at the toss that what they want to do is play the modern style of cricket and play aggressive cricket. I think there's a difference between aggressive cricket and perhaps another style. Oh, it's beautifully bowled. That is a magnificent delivery right at him. Had nowhere to go. Yep, almost badged him. One of the over. One of the over. So yeah, I think there's a very fine line between being silly and being brave. But yeah, very good bouncer there by a good follow-up delivery. He has been hit for 12 runs in the first 4 overs and a very good bouncer. Yeah, I thought he was in trouble at one stage. Thankfully, it just went over the top. Eventful over. So last ball now. Aggressive cricket it is. Is it too aggressive? It is too aggressive, but he's got away with it. It is a drop catch. It would have been a really good catch if it had been taken. Let's make no bones about that, but it has gone for 4. So 16 off the over, 29 for 2, 5 gone. Don't forget to create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. You can get these shirts, get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirt signed by the Pakistan squad. The offer ends on the 15th of October and 5 lucky winners will be announced after that. It's a nice kit. Hashtag wear your passion. That was a nice solid shot. That sounded better. Right out of the middle. And that's much better from the northern batters. Deep point and deep mid-wicket. There was no fielder on the cover. And a very good shot. Stand and deliver from Omar Amin this time. The last over of the power play, and that's away as well. So that's back-to-back boundaries now. This is better cricket. 2 good shots. And third over, consecutive over for Imran Khan Senior. He gave away only 8 runs in the first 2, and the first over was maiden, but he has been welcomed with 2 boundaries in the third one. It's not easy to bowl 3 consecutive overs in a power play. The batters kind of read you. Your 2 fielders, they know what fielders are out. So I'm not very sure about this. Yeah, with only 2 out, yeah, dead right. That's picked up too. And that is a beautiful shot. Perfectly timed. And this time, Imran Khan Senior wanted to go full. He got hit on 2 short pitch deliveries, back of the length deliveries. This time he was full, and Omar Amin exactly knew that there was no fielder on the cow corner. Very good execution, 3 fours. He picked up that slow ball perfectly as well. He's got that slow ball where he cuts down the back of the seam, so the ball actually rotates backwards. That's his variation. It's effective. It was well spotted by the batsman, and that's bat on that, and that's sliced away for another boundary. What do we got here? 4, 4, 4, 4. What a start of the over.
And that's the problem. When you make the bowler bowl 3 consecutive overs, the batters have an idea. Even though there was a change in field, deep point fielder came in, now there was a chance for the batter. And Umar Amin using the crease really well, playing with the field. Excellent cricket. It's not very often you see 6 fours on an over. He doesn't want to see them. I bet there's a few viewers right now that are sitting a little bit more upright. Just wondering if it can happen. 6 fours are 24. Let's see what happens. I bet the batsman's thinking about it. That's boring. Boo. And it only takes 3 or 4 deliveries for us to get spoiled. And these are the 4 boundaries. Umar Amin going after Imran Khan Senior. First one on the offside, then leg side, then excellent pickup shot on the leg side, and then the improvisation. Excellent cricket. Yeah, it's beautifully played. Really is. Still, it's a long over as far as Imran Khan Senior is concerned. Not just the fact that it's 3 overs on the trot. Should just be the one. They chop through only for that, but gee, that's a really good over. Much better played over. 18 from it. 6 overs gone now. 47 for 2. There we go. There's the signal letting us know that the power play's done. And Nasir Nawaz and Umar Amin have this is the run rate again. Northern 8.69. They are still at the top, even though for the first 4 overs KP bowled really well, but in the last 2 overs they scored 34 runs. Into the attack. We've got a flight first up. Nicely bowled. Israrullah starting off with almost a yorker there. Low full toss. So what'll be going through the batsman's mind now is that he overpitched that, and the batsman perhaps missed out on something that might have been a full toss if he got a good stride in. Yep, I thought he might be looking to drive. Anything else that's pitched up after that, which he did. We've got a question for you, a soccer question of the day. Which player hit the most sixes in the National T20 2020? Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. Good to see Rizwan out there today. I was a bit worried about him actually after that blow on the leg yesterday. What did he say to you at the presentation, Sana? Yeah, I asked him about his injury and he said that he had some swelling on his leg, and they will assess it when he goes back. So it's good to have him back on the field. KP will definitely need him if they want to change that record against Northern. Again full. But the fielders are in the right spot, so the protection's there. And Nasir Nawaz, he plays just one kind of cricket, very aggressive, still batting at 150 even though wickets were falling around him. This is only the second time that Northern have batted twice in 6 games. Correction, second time they batted first in the 6 games, so it's a little bit different for them. That wasn't the reason that
Rizwan asked him to. He basically said the pitch didn't matter too much. He just wanted to go with his strength and bowl first. And Israrullah bowling according to his field, 93 kilometers per hour after 7 Northern, 52 for 2. So they're just getting going at the end of the power play, overs 5 and 6, and clamped with the first over spin outside the power play. We've got spin again now, and Asif Afridi's done a really good job. Asif's been very, very tidy. 34 years of age, slow left arm. Going at 5.2 runs of the over. That's magnificent. And he's still the highest wicket taker as far as the spinners are concerned. 8 wickets. Yesterday he was also the player of the match. That's always a little bit fraught with danger, that, when you're doing that against Afridi. He's got the ability to hurry the ball on occasionally. If you're backing away and showing those 3 stumps and you're not in total control of your form at the moment, then I guess there's a slight chance. Just got to make sure it's short enough, which again is something he doesn't do very often. His length is always so consistent. And this is the reason he's so consistent. He changes the pace really well also. Just look at that. These are the 3 wickets. Slow one this time. Back live now. Cries of catch it, and that is going to be out. So we showed the replay of his wickets, and that's brought him a bit of good luck and some pretty silly batting. From 93 kilometers per hour, he changes the pace to 87 kilometers per hour, and this has been his strength. That's why he's the leading wicket taker as far as spinners are concerned. He varies that pace really, really well. And Omar Amin was not able to understand the change of pace this time. Gave a catch, easy catch, deep mid-wicket. Gone for 27, Northern 53 for 3. Two balls left in the over. So they're in a bit of trouble here. 3 down, 50 on the board. They've got to get a partnership going. Unfortunately, Umar going for 27 off 26 balls. That hasn't advanced their side too much. 27s. You've got, unfortunately, in T20 cricket, you've got to have one of your top 4. Got to get a big total. Nawaz now. And just look at that. Omar Amin against a left-arm spinner. He wanted to take that chance playing with the spin, but the pace deceived him. Slip in position. So Rizwan is going to play the game of get the spinners in through a few overs here and get them through their overs fairly quickly. The fall of the wicket, don't get the batsmen get on top of the spinners so they can just whir away from both ends. That's what his game plan will be if he can do it.
There's some miserly overs. Let's don't allow boundaries at this stage. 8 overs gone now. 55 for 3. बचपन पे 3 खिलाड़ी आउट 8 ओवर्स के इख्तिताम पर आते ही आज शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए और फिर आसिफ आफरीदी ने अपने पहले ओवर में 1 विकेट हासिल की। अपने शानदार फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए केपी शॉट खेला है, हाथ में जाएगी फील्डर के, क्योंकि बिल्कुल भी बॉल की लाइन के पीछे नहीं थे। ये स्पिनर्स ने अपना अब काम दिखाना शुरू कर दिया है। बैक टू बैक स्पिन के ओवर्स और बैक टू बैक विकेट्स। चार्ज करना चाह रहे थे लेकिन बहुत दूर हो गए थे बॉल से, बिल्कुल टो एंड लगा है बैट का और पहले ही माइंड बनाया हुआ था कि अटैक करना है और आसान कैच इस बार। और इस वक्त नॉर्दर्न के पास कोई तोड़ नहीं है केपी की बॉलिंग का। नासिर नवाज 24 रन बना के वापस जाएंगे, 55 पे 4 नॉर्दर्न। कैसा भाई? अब आदिल अमीन चला गया है, उसका हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ है, वो फील्डर आया। आदिल अमीन That's perfect. Left arm round the wicket. शादाब खान कप्तान आए हैं अब सामना करने के लिए स्पिनर्स का। इसरारुल्लाह ये विकेट आई थिंक किसी हद तक दे दी। नासिर नवाज ने काफी देर से वो खामोश थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेट्स गिर रही थी, इतनी बॉलें उनको फेस करने को मिली नहीं क्योंकि वो ओपन करने आते हैं और उनकी हार्डली कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनके नाम के आगे, सिर्फ 19 गेंदें खेली। डेस्परेट शॉट लग रहा था ये। बिल्कुल, अगर आइडिया हो गया था कि दूर है गेंद से तो नीचे अलोंग द ग्राउंड खेल देते, लेकिन वो कमिटेड थे और शॉट मार गए और इसी का एहसास इन्हें बाद में हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। दो रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ा सा लेट निकले नवाज, लेकिन रन था मौजूद। काफी बैटिंग है नॉर्दर्न के पास, वो इन 4 विकेट्स के गिरने के बाद भी अपने आप को इतना बैक कर सकते हैं कि एक स्कोर अच्छा हासिल हो जाए, 100 रन 110 रन और ऐड हो जाए। लेकिन एक चीज पक्की है यहाँ के इनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, जो शादाब खुद भी कहते हैं कि हम ऑल आउट जाते हैं जितनी विकेट्स भी गिरें। 9 ओवर के बाद 59 for 4।
Again, right arm round. खैबर पख्तूनख्वा की बॉलिंग, हर एक बॉलर जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है बखूबी निभाया है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो चाहे स्पिनर्स हो। और अब इफ्तिखार के हाथ में गेंद है, उनको भी मौका दिया जा रहा है कि प्रूफ करें कि एक हैंडी बॉलर है। नवाज के लिए स्पेशली इफ्तिखार को दावत दी है। लेफ्ट हैंडेड बैट के लिए शायद अपॉर्चुनिटी निकल आए ऑफ स्पिनर की। सलाहियत मौजूद है, शायद आपने भी एक मैच में 20 गेंदों पे 30 किया, अटैकिंग क्रिकेट खेली। नवाज 2-3 इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल चुके हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा और स्ट्राइक रोटेशन ज़रूरी होगी। ओवर्स अभी काफ़ी पड़े हैं, बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी है, लेकिन ये दोनों अच्छी निक में इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अभी नॉर्दर्न को ज़रूरत है इस पार्टनरशिप की। अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर। 147 की उम्मीद है अगर ऐसे ही खेलते रहे। ये प्रॉब्लम विकेट्स कॉलम है, वहां थोड़ा सा सेंसिबिलिटी लानी पड़ेगी नॉर्दर्न को। बिल्कुल अंदर क्रीज के जाके विकेटों के सामने से खेल रहे हैं इस वक्त नवाज। हमने कल देखा था कि विकेट गिरी थी, कासिम अकरम की गेंद पर आउट हुए थे शर्जील खान गेंद पर, लेकिन नीचे से निकल गया था। वो तो वैसे हॉरिजॉन्टल बैट से पुल करते हैं, वो किया भी उसी तरह जाता है, बट उनका स्ट्रेट शॉट्स भी जरा हॉरिजॉन्टल बैट होता है, नीचे से निकल गई थी गेंद। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आप इतना डीप जा रहे हैं अंदर क्रीज में, तो कोई बॉल अगर लो हल्का सा भी रास्किड हो गया तो आप फिर उसको नहीं रोक पाएंगे। ऊंचा शॉट था, आपिश रहा थोड़ा सा, लेकिन गैप मिल गया। अच्छी फील्डिंग थी और आसिफ अफरीदी मौजूद थे कवर बाउंड्री पे। मुश्किल ये भी है कि कौन से बॉलर को पिक करें, किस पे अटैक करें, किस पे ना करें, क्योंकि केपी के पास एक से एक ऐसा बॉलर है जो फंसा के रखता है। और एडेड उनकी फील्डिंग अभी तक आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स रहे हैं ये। ओ एज निकला था, पुश किया हार्ड बॉल की तरफ और 4 रन हासिल हो गए। इन 4 रन्स को तो ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा इस शॉट से। 10 ओवर मुकम्मल हो गए, इस पे वापस आएंगे 68, 4 आउट। ये बैटिंग कार्ड आप देखें, नॉर्दर्न रोज बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करते हैं, कभी रोहिल ओपन करते हैं, कभी 7वें नंबर 8वें नंबर पे आते हैं। उमर अमीन की जगह ओपन किया था रोहिल ने, अब उमर अमीन 4 पे आए हैं। नवाज को 3 नंबर भी दिया गया है, कभी 4 पे आते हैं। सही है, एक्सपेरिमेंट्स, नए नए कुछ इनोवेशंस होती हैं। नॉर्दर्न ने फ्लेक्सिबिलिटी की इंतहा पे हैं, वो बिल्कुल भी किसी एक पर्टिकुलर जो कहते हैं ना गेम प्लान पे नहीं जाना चाहते। वो अपनी बैटिंग के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, कहां कौन सबसे अच्छा फिट होगा। ये 4 रन्स थे, अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लेंथ थी, डिफेंड करने गए थे, लेकिन हर चीज सही थी, एज भी लगा, मगर कोई रिसीविंग एंड पे नहीं था। और अब
अफोर्ड कर भी सकते हैं नॉर्दर्न, मैचेस जीत भी रहे हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं रही इन्हें, तो अफोर्ड कर सकते हैं कि सेकंड लेग के लिए क्या बेहतर कॉम्बिनेशंस होंगे, कौन सा बैटर किस पोजीशन पे ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आसिफ अली का भी कई बार नंबर चेंज हुआ है। अभी इमाद वसीम ऊपर आए हैं, इनसे ऊपर नवाज आए हैं, इनसे ऊपर खुद कप्तान भी आए हैं। जब आप ऑल आउट स्ट्रेटजी पे जा रहे होते हैं बैटिंग करते हुए, तो आपकी आई थिंक पहला गोल तो यही होता है कि 20 ओवर खेलने हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि नॉर्दर्न चूक गया, 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाया था। तो अटैकिंग क्रिकेट अच्छी चीज़ है, 20 ओवर खेलना ज़रूरी है। इन्होंने एक बड़ा स्कोर किया है, 201 इस टूर्नामेंट में। अच्छी बॉल, एक बार 177 किया, फिर देखें 140 और 136 पे भी आउट हुए हैं। फ्लक्चुएशंस हैं डेफिनेटली। ये अच्छा बॉल था, अंदर आया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खेला है नवाज ने। करेक्शन करता चलो, 140 चेस किया था, 136 फर्स्ट बैटिंग पे आउट हो चुके हैं। उसके अलावा एक बारिश की नजर हुआ था, 62 फॉर 3। ओवर मुकम्मल हो गया और 11 ओवर्स के बाद स्कोर 71, 4 आउट। पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए शाहीन आफरीदी ने, 2 स्पिनर्स ने आउट किए हैं, इसरारुल्लाह और आसिफ आफरीदी ने। काफी फ्रीक्वेंट चेंजेस ला रहे हैं रिजवान। आसिफ आफरीदी से करवाया एक ओवर, फिर इसरारुल्लाह दूसरे एंड से, फिर चेंज किया, इफ्तिखार को लाए, अब मोहम्मद इमरान को। कल बैटिंग में इन्होंने सरप्राइज किया था, आसिफ आफरीदी को ऊपर भेजा था, चौथे नंबर पे शायद, चौथे नंबर पे भेज दिया था। काफी हद तक काम कर गया था आके, उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया था गेम का। 11वें ओवर में केपी ने अब 7वां बॉलर आजमाने जा रहे हैं और इतना क्वेश्चन है अभी इनके पास भी। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, स्कोर इतना नहीं कि ये ट्राई कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग जहां आती है वहां चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं स्कोरिंग के। अच्छा स्टॉप किया, दाएं तरफ डाइव करके। आदिल अमीन फील्डर थे, जाते जाते गेंद को अपने हाथ से फ्लिक कर लिया वापस। मोहम्मद इमरान ने भी अच्छी बॉलिंग की थी अभी रिसेंटली पीएसएल में। बड़ा फायदा होता है यंगस्टर्स को, हाई क्वालिटी क्रिकेट हो रही हो, इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन आपके सामने हो और आप अपनी परफॉर्मेंस दें, तो आप फिर ऑब्वियसली एक डिफरेंट बॉलर बन जाते हैं। फिर डोमेस्टिक में आप कमांड डिमांड करते हैं चीज़ें। फुल करना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे शादाब। 135 की स्पीड से ये बॉल आई थी, थोड़ा सा लो रही है। अब थोड़ा सा देखने को आ रहा है कि उतना ट्रू बाउंस जो शुरू में नजर आया था अब नहीं नजर आ रहा। बैटिंग की बात कर रहे थे सिकंदर, अक्सर T20 में हमने देखा है कि कुछ टीम्स, कुछ कैप्टन्स जो हैं वो स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं स्पेशलिस्ट और थोड़ा अटैकिंग प्लेयर हो, और कुछ शादाब की तरह ऑल आउट जाते हैं।
जो कॉम्बिनेशन आपकी टीम के लिए फ़ायदेमंद है, जाहिर है उसको मेन मैचेस में अप्लाई करना होता है। बट हमने थोड़ा सा बलूचिस्तान की तरफ देखा कि जो स्पेशलिस्ट, जब उनके दो बैटर्स एक साथ खेल रहे थे तो उन्होंने स्ट्रगल किया था एक्सेलरेट करने के लिए। तो ये भी इस T20 टूर्नामेंट में कैप्टन्स की नज़र में रहना चाहिए कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते रहें कि रन रेट जो है वो नीचे ना आए। एक एंड पे अगर कोई संभाल रहा है एंड, तो दूसरे एंड से स्कोर होता रहे। देखिए वही वो एज ओल्ड बात है, और रोल्स डिफाइन होने चाहिए। इसके क्लियर एग्जांपल कल आपको शोएब मलिक ने दिया। जब टीम डाउन एंड आउट है, विकेट्स गिर रहे हैं, तो आप अपना रोल समझते हैं क्या है, और फिर जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप वही करते हैं जो शोएब मलिक ने अपने आखिरी 3-4 ओवर्स में किया। तो वहाँ ऑपोजिशन को टाइम नहीं मिलता गैदर अराउंड होने का और समझने का कि किस तरह से काउंटर करें इस अटैक को। वहाँ आप कहते हैं ना कि वो बाय सरप्राइज ले लेते हैं आप अपनी ऑपोजिशन को। गेंद हवा में रही थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट हिट हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पहुंच गए नवाज क्रीज में। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया इस सिंगल के साथ। 75, 4 खिलाड़ी आउट। एक गेंद बाकी है, सॉरी वो लगा कि ओवर हो गया, एक गेंद और बाकी है। शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बात की थी कि राइट टाइम पे ऑपोजिशन का पैनिक बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, और फिलहाल पैनिक नॉर्दर्न के डगआउट में हो ना हो, टपाल टी ज़रूर मौजूद है। फ्लिक कर दिया, अपने लिए जगह बनाई, लेग स्टंप एक्सपोज हो गई थी। कनेक्ट ना करते तो आवाज आती जो उनको पसंद ना आती, लेकिन 4 हासिल हुआ। अच्छी टाइमिंग रही इस शॉट पे उनके लिए, काफी प्रैक्टिस की होगी। इस चौके के साथ 78, 4 आउट, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। Hey! 6.5 per over. Northern going at 78 for 4. 12 overs done. It's going to be Asif Afridi. 2 overs, 1 for 6. He's been a revelation this tournament. Sana's had a close eye on him. A few other tournaments. This was a classy shot. Maneuvered to the offside. It takes huge amount of skill to play that shot, and we just take it for granted. Slightly slower, outside off, and still won't reach the fence. So, couple of runs. And yes, he's quite a handy cricketer. He can bowl really well, bowl with the new ball, bowl at death, bat well. He's quite flexible with his batting orders. A very good shot here by Shadab. Great improvisation. So, as a captain, as a coach, you really want players you can surprise the opponent with, and Asif Afridi has been that in this tournament. Another chance there. Yeah, it just seems as if the batsman can't reach him because of the variation in pace that he's got. That one again, he's not been able to line him up. It's not full enough for that shot. Nawaz takes a risk, takes a chance, gets away with it. But just because the subtle variations in pace of Asif Afridi make it so difficult for the batsman to get a hold of him. Yes, and look at that. Sometimes 99 kilometers per hour, sometimes in late 80s. And he does that all with so much control. And yesterday I was talking to him, asking him about how he reached the conditions. And that's what he said, that you cannot bowl with one pace.
So he's been doing it really well. Look at the variation: 101, 84, 92, 99. So all very different speeds. 1-1-1. And again, comes at him, but doesn't find the length. Just a single down the ground. Another good over from Asif Afridi, 83 for 4. Broadcasters, Pakistan, North America, UK and Europe streaming. Well, if you want to stream, you better go on to PCB YouTube channel, PCB Facebook page. High definition pictures. Well, at the moment, this game, well, poised at a stage where you would say that Khyber Pakhtunkhwa are in front, but this northern batting, well, it goes very deep and they'll keep on attacking. So it's up to the two all-rounders right now, Nawaz and Shadab. Imran continues. Just over mid-off. Fingertips to it, but the result in favor of Nawaz. Good start to the over for Northern. Asif Afridi bowled really well, and they had to take a boundary of the first ball. That's how they want to start. Shaheen Afridi was in the picture, but it was too high for him also. Change in field. Long off in place. Third comes into the circle. Shot pulled into the leg side, no timing. Just a single. And the partnership now of 33 runs on 31 deliveries. And the problem has been for Northern in this match has been that the highest run getter is 24 runs. No one has gone on to make that big score. On these pitches, we have been talking about the importance of having that longer innings. Not easy for new batters to come and start hitting. Well, they need to start hitting. 12 and over from here on end, 168. So need to really press on the accelerator straight away. Shadab looking leg side. Moves away, smashes it through the offside. There was no sweeper on the offside. Shadab made full use. And this is looking like an over they were waiting for. Shadab uses the crease, opens up the offside for himself, and a really good shot. Let's look at that. There were 4 fielders on the leg side on the boundary, no fielder on the offside in the deep. Very good batting. Yeah, the conference now, which has just dispersed. Shaheen Shah Afridi came in from long on. It was Rizwan, came to the bowler, and there's no field change as yet. It's interesting field set. All the fielders on the leg side on the fence. Nobody protecting the boundary on the offside apart from a third. Wants a wide. I don't think he's going to get that. He's already shifted down the leg side. He's a good bouncer. A lot of different things happening today that we don't expect. One of them, that Northern are under pressure against KP. KP has not beaten Northern in national T20.
Short again. This time, yeah, white ball. And with this field set, he would be bowling that short ball because the third was back and all the fielders on the leg side. But now there's a change of field and I expect a change of length also with this. The fine leg comes in and cover goes back. Ram shot, gets the gap. This is good batting from Shadab. Good batting, but not so good bowling. He's not bowling good to his field, and a captain cannot do much. Now, when the fine fielder comes up, he doesn't change the line. Still on the leg side, even though Shadab improvised, but the ball was still on the leg side. It was a slow one. He couldn't take it to the offside. It was easy for Shadab to play this shot. Big over, 14 off it. One more to go. Where does Shadab go now? Behind the wicket are the boundary options. Oh, he's got him. Is that hit the stumps? It did hit the stumps. Yeah, Rizwan does it in the end. I thought it had bowled him. It actually hit the stumps, but Bales didn't come off. 97 for 4. Of the 14th. That last delivery. Closer look. Inside edge, and that is pretty decent thud into the stumps. It's not just a little flick. It's actually gone into the stumps, and yeah, Rizwan just checks if the bails are falling off or not. He just wanted to see if they were not glued. Asif Afridi again. Nawaz not being able to hit him out of the park. He's tried it a few times. What he does really well is that he starts and ends the over really well. Bowls that flatter, faster delivery at the start and the end, and then change of pace in the middle. Yeah, very good white ball cricket bowler. So now you watched him a lot. You watched him in a few tournaments. Yes, and what's impressive about him is that he gives that flexibility to the team and the captain, that you can bowl him with the new ball in the death overs. We have seen him defending a final in the last over as well. And then you can use him in the middle and with the bat also in the middle and the lower middle order. So quite a handy cricketer. Tries his luck again. This time he does succeed. Finally, Nawaz with a big hit. And that's the change of pace, but this time Nawaz was on it. It was there to be hit, and Nawaz down on one knee, straight down the ground. And the partnership now of 50 runs between these two, Shadab and Nawaz, the two all-rounders that are going to the World Cup, to 39 runs, 39 balls, 50 runs partnership. Just on Asif Afridi, he's got 9 wickets in this tournament, which is just second to Shaheen Shah Afridi.
And overall, he's got the best economy rate of all bowlers in this tournament. So, gone under the radar, but in spin bowling department, he's been the best. And good recoveries there, both by Asif Afridi after getting hit for a 6. Good follow-up deliveries. Deep extra cover and deep mid-off. 3 men in the circle on the offside, protruding square. And he goes for the Yorker, delivers that well. So after 15, it's 108 for 4. Yeah, top of the table in terms of sixes. Northern go hard from top to finish, and Shadab today, well, he's been able to maneuver himself to get boundaries, giving himself room outside leg and then going to the offside as well. Played with the field, played with the mind of the bowler, and even had the stumps play a role. And what's really important now for Northern is that at least one of them, Shadab or Nawaz, can go that 20-over mark. They are both in their 20s, and that's what has been the problem. Nasir also went away scoring those 20 runs. So if they want a big total, one of them at least has to play all 20 overs. Beautiful hit. Sound of the bat was just superb. That's a big hit from Nawaz, and one of the best. Absolutely, one of the best shots of the day. Slow one there by Arshad Iqbal. Picked up really well. And a proper shot, proper cricketing shot. Showed the full face of the bat. Excellent follow through, full extension of arms, and the full distance. Why not? And it's gone through there. That was a powerful hit, to say the least. The balance, the power, and Nawaz knew as well. As soon as he struck it, he knew this was gone. And I think all the stadium knew because of the crack of the bat. And it's gone through. Gone through, why not? Just above us. Thankfully, we're well protected. Cameraman looking for it. Well, I don't think he's got a chance. He needs the whole camera to focus. So without that, will he able to be finding that ball? Shadab is trying to direct him, and these are the wickets. Shaheen Afridi, first ball wicket. Ali Imran, he was given a chance in this match, and this was the big wicket. Haider Ali. Then Asif Afridi came into ball, got the wicket of the very first ball, and then again, once again, Asif Afridi giving the breakthrough. Sorry, this was Asrarullah. Yeah, that ball, I think, has disappeared. We need more eyes on it.
closer look. Yo, just look the other way. You can't find it. He's had enough. Had enough looking for the ball. Yeah. Oh, well done. He's done it. It took about 7 people to actually locate it, but in the end, James located that white ball. Normally he's not able to do it with the camera, but he's done it on himself. Oh, misfield. There's a chance of a direct hit. Chance of a run out. They've got a direct hit now, but that costs them. First the misfield cost them, and then the Shah free, the direct hit cost them. Adil Amin is not having a very good time in the field today. The third misfield by him. If he could have grabbed this on the first go, there might be a chance. Might have been a chance, and Shaheen Afridi hitting it straight, and the batter's good game awareness. Back to his normal length, just short of a length. Slightly slower pace off. And after that first delivery, I don't think he'll venture full again. So 9 of the first 3. And this partnership is doing really well in terms of getting the boundaries away. Now Shadab will probably look for one more boundary in this over to make it a big one. It's long off and long on out, deep mid wicket, deep square leg. So boundary options behind the wicket. Full pitch into the leg side, no timing. And the umpire has given it a no ball. So extra runs now and extra ball. Standing deep in the crease, but even then, Kaisar Waheed spotting the no ball. Nasir Hussain helped him. So free hit. Nawaz on strike. Rizwan. Slight adjustment in the field, but there we go. Length ball into the leg side. Is it in the gap? Yes, it is. They'll come back for 2. And the 7 bowlers have been used by KP. (13) with 2 balls remaining. Behind point on the offside. No, Yorker. Just a single. Good delivery there. Arshad Iqbal this time nailing that Yorker. Let's look at that. Very good ball. Nasir Nawaz. Mohammad Nawaz has been hitting it really well. 40 of 28 deliveries.
mid-off and cover in the circle. So the option there to go over the offside. Arshad Iqbal goes short of a length. Well, you don't mind it because that's gone out of the ground. Doesn't need to be in the gap when it's sailing away. 128 for 4. एक 128 पर 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और ये सफर रहा है नॉर्दर्न का। पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी, फिर पावर प्ले के बाद दीगरे 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन शादाब और नवाज ने उसके बाद से सूरत हाल को संभाला है। ये पार्टनरशिप बड़ी पाए की रही है, 73 रन की। अरशद इकबाल को जोरदार छक्का लगाया पुल करके शादाब खान ने, जो कप्तान की इनिंग्स खेल रहे हैं। पिछले मैच में भी जब ये खेले थे, आपको याद होगा, तो एक अच्छा पुल शॉट लगाया था इन्होंने नसीम शाह के खिलाफ, बिल्कुल इसी इलाके में। ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि क्योंकि दोनों पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स हैं वर्ल्ड कप में, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं शादाब और नवाज से। शाहीन वापस आ गए हैं, जिनके 2 ओवर्स बाकी हैं। अच्छा खेला, लेकिन रन एक ही मिलेगा। अरशद इकबाल थे। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में वापस आ गए हैं सिकंदर बख्त, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। 55 पे गिरी थी चौथी विकेट, उसके बाद से इन दोनों शादाब और नवाज ने उमदा पार्टनरशिप 74 की बनाई है। 50 गेंदें खेल ली हैं और बड़ा अच्छी तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से लेकर गए हैं इस इनिंग्स को आगे। जब 4 विकेट्स बाकी हैं, 4 ओवर्स बाकी हैं इस ओवर को मिलाकर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये 160-65 पे जाएंगे, इससे ज्यादा भी। यहाँ फाइनल लेग को आगे बुला लिया गया है। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की और किसी हद तक सरप्राइज भी किया शादाब खान को, क्योंकि थर्ड मैन फाइनल लेग पर दोनों फील्डर्स दायरे के अंदर मौजूद थे। बहुत चालाक बॉलर है शाहीन आफरीदी। नई गेंद पर गेंद आगे गिरा रहे थे और अब देखिए इनको ये भी इल्म है शादाब को कभी कभार परेशानी होती है शॉर्ट गेंद पे। 4 ओवर में 2 शाहीन आफरीदी के, तो इनको थोड़ा सा इनको भी असेस करना पड़ेगा कि 12 गेंदें भी इंपॉर्टेंट हैं। कितने रन हासिल कर सकते हैं बगैर विकेट को अपने फेंके। गंवाना अलग है, फेंकना अलग है। निहायत शानदार छक्का और बाला बाला गई गेंद फील्डर से, बाउंड्री से सीधी स्टैंड तक। जोरदार वार किया नॉर्दर्न के कप्तान ने। तो जैसे गोल्फ के क्लब का स्विंग होता है वैसा शॉट था, इतना फुल कर दिया। थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल की कोशिश थी, बिल्कुल स्लॉट में चली गई बॉल। बहुत ही बड़ा छक्का ये शादाब खान का। यहां पे लेंथ पे चूक जाए तो बैट्समैन तैयार होता है, फिर वो ये नहीं देखता कि सामने बॉलर कौन है। यह गेंद अभी तक वापस नहीं आई है, इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही लाजवाब शॉट था, क्योंकि यहाँ पर झांसा देने की कोशिश की। पहले बाउंसर किया, उसके बाद बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी शादाब खान के एरिया में आई। यहाँ रन रेट जो है ये पहली बार 8 से आगे निकल गई है। 1 रन पर 2 विकेटें गंवाई थी।
ये पहले पहल जब रावलपिंडी रैम्स की टीम खेलती थी, नॉर्दर्न्स ने भी जो चैंपियनशिप फैसलाबाद में जीती, इनके ओपनर्स और टॉप ऑर्डर उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक नया रुझान सामने आ रहा है कि हर दूसरी इनिंग्स में इनका मिडिल ऑर्डर, इनका लोअर मिडिल ऑर्डर ये टीम को बहरान से निकालता रहा है। शादाब ने इस गेंद को इससे भी ऊपर पहुंचाया। सैनिटाइज किया गया गेंद को, और ये देख सकते हैं पिछली 21 गेंदों का जो हालचाल है, 52 रन बना लिए हैं इन दोनों ने। दोनों ही जा रहे हैं अब अगली मंजिल सर करने के लिए, निस्फ सेंचुरियों की जानिब गामजन है। 5 खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के नॉर्दर्न में। आसिफ अली, शादाब, इमाद वसीम, नवाज, हारिस रऊफ। इसमें से 4 ऑफ कोर्स बैटर्स हैं और फिर स्पिनर्स हैं। अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सबको बॉलिंग में। एक और शानदार शॉट, इस बार 4 रन, जरा सा पीछे हटे और ऑफ साइड में रूम क्रिएट करते हुए ये स्ट्रोक लगाया शादाब खान ने। ओवर द विकेट आइए, राउंड द विकेट आइए, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, लेंथ की ही बात है। दोनों एंड से आप ओवर और राउंड आए, लेकिन लेंथ जो है वो गलत हो गई। पीछे हटकर अपने लिए रूम बनाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। इनके आर्क में है ये बॉल। यह पिच बैटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सहल लग रही है। इब्तदाई दिनों में हमने देखा था स्पिनर्स को मदद थी। एक और उठता हुआ शॉट, एक और चौका शादाब खान का। शादाब इस ओवर में पिल पड़े हैं। शाहीन आफरीदी पिछले मैच में इनके एक ही ओवर में 5 चौके लगे थे, यहां पर भी इनने 15 रन दे दिए हैं। अभी एक गेंद बाकी है। देखिए ये स्मार्ट क्रिकेट है। अगर फुलर लेंथ प्रिडिक्टेबल हो रही है तो इस बार इन्होंने उसका इंतजार किया और स्लाइस कर दिया इसको बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। पेस इतनी है मौजूद बॉल पर कि उनको सिर्फ एंगल करना है बल्ले को। ये स्मार्ट क्रिकेट है। वापस आ गए हैं ओवर द विकेट। अब इससे फील्डिंग में भी रद्दोबदल हुआ। मिड ऑफ के फील्डर को कहा गया कि आप आगे आ जाएं। साहबजादा फरहान को फाइन लेग पर, इमरान खान को पीछे अब भेजा जा रहा है। ये ऑफ साइड में 3 फील्डर दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन को भी अब पीछे भेज दिया गया, तो शॉर्ट गेंद आ सकती है। इशारे यही मिल रहे हैं। लेकिन गेंद को आगे गिराया। यहां दूसरा रन लेने की कोशिश की थी शादाब ने, लेकिन मौका नहीं दिया इसरारुल्लाह ने। 17 रन इस ओवर में बने, 144 पर 4। ये बॉलिंग के वसाइल हैं। 7 बॉलर्स को आजमाया। अभी इमरान खान के 2 ओवर हैं, मोहम्मद इमरान के। और इमरान खान सीनियर जो हैं उनका 1 ओवर बाकी है। वही ये 18वां ओवर करेंगे। तो यहाँ इनके पास मौका है कि ये मजीद 3 ओवर्स में ये 50 रन भी बना सकते हैं, जिस तरह दोनों सेट बैटर्स हैं पिच पे सिकंदर। गेंदें बहुत है, 18 गेंदें बहुत होती हैं। इसको आप डबल भी कर दें तो आप आराम से 180 तक जा सकते हैं। इस बार गेंद ऊपर है, कौन नीचे आएगा? इमरान खुद आ रहे हैं। जी हाँ, कैच ले गए। और उसके बाद शादाब खान को उनने सेंड ऑफ भी दिया। आहिस्ता गेंद की थी शादाब, जल्दी स्ट्रोक खेल गए।
जो शॉर्ट बॉल हुआ, थोड़ा गेंद बड़ा हो गया और इसको अच्छा कैच किया वापस जाके अपनी ही गेंद पर इमरान खान सीनियर ने। उनका जो रिएक्शन है उससे अंदाजा होता है कि आप कितना बॉलर को परेशान कर चुके हैं अपने शॉट से। एक प्रेशर फील कर रहा होता है फील्डिंग यूनिट, और जब वो रिलीव होता है तो ऐसे रिएक्शंस आते हैं। 46-27 गेंदों पे अच्छा नॉक कप्तान का, 144 से 5। शादाब खान की शानदार इनिंग्स खत्म हुई और अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं आसिफ अली, जिनको इस टूर्नामेंट में यही देखा गया है कि ज्यादातर 7वें नंबर पर खिलाया गया है। 209 मैचेस खेले हुए हैं। सन 2011 से T20 तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। ये देखिए, ये आहिस्ता गेंद थी और ये बढ़ती चली गई शादाब खान पर। पिछले ओवर में पुल शॉट पर इन्हें बाउंड्री मिली थी, लेकिन इस बार इमरान को विकेट। लेकिन एक कप्तान की इनिंग्स थी, वो फर्ज निभाया बड़ी खुशसलूबी के साथ शादाब खान ने। जब आए थे 55 रन पर 4 विकेटें गिरी हुई थी और अपनी टीम को एक मुकाबले की पोजीशन में ले आए। शादाब खान 46-27 गेंदों पर बनाकर आउट हुए और अच्छी बैटिंग की, कुछ चांसेस लिए, इम्प्रोवाइजेशन की, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया है, अपने डिफरेंट स्ट्रोक्स को डिस्प्ले किया, शॉर्ट बॉल्स को भी नहीं बख्शा और स्लो बॉल्स को भी नहीं छोड़ा और बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। ऑल राउंड द पार्क खेले शॉट्स, 6 चौके और 2 छक्के लगाए अपने इस 46 के स्कोर में। यही वजह थी कि तमाम टीम ने खड़े होकर उनका खैर मकदम किया। बैट बार लगी और अंपायर ने पहली फुर्सत में ही आउट दे दिया। आसिफ अली बगैर कोई रन बनाए एलबीडब्ल्यू आउट हुए। एक और विकेट इमरान खान को मिल गई। 3 गेंदों में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, पिछले पैर पे, बिल्कुल एंकल पे जाके लगी। बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग इमरान खान सीनियर की। अच्छा स्विंग करते हुए बॉल को अंदर, परेशानी देते हुए नॉर्दर्न को जो बड़ा स्कोर हासिल करना चाहते हैं। और ये जो विकेट्स हैं ये श्योरली इनके प्लान को डेंट कर रही हैं। फ्रंट फुट के चेक के लिए रोका है आसिफ अली को। ओ ये मामला जो है वो सही नहीं लग रहा केपी के लिए। क्या ये जूता ड्रैग होके आगे गया है, लैंड ही बाहर हुआ है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो हद से गुजर चुके हैं और वापस बुलाया जाएगा आसिफ अली को। और ये महंगा भी पड़ सकता है, जिस तरह के वो बैट्समैन हैं। ये हद से गुजर गए और अब मौका दे दिया कि बैट्समैन आपे से बाहर हो जाए, क्योंकि ये नो बॉल है और फ्री हिट है। ये देखिए, इनका जो पांव है जिस वक्त लैंड हुआ है, वाज़े तौर पर तकरीबन उसी वक्त ही ये लकीर से आगे थे। जी हाँ, लकीर का यहाँ पे फकीर भी नहीं हो सकते, बल्कि लकीर के पीछे होना जरूरी है आपकी एड़ी को। नो बॉल थी।
फ्री हिट आसिफ अली। इस बार फील्डर हैं लेकिन गेंद उनसे बाला बाला गई। एक और छक्का। आसिफ अली इसी की शोहरत रखते हैं, ये किसी को दोष भी नहीं दे सकते। इमरान एक और यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन ये बल्ले पर आ गई। नहीं, बहुत अच्छा बॉल किया था पिछला, ऐसे लग रहा है इस बॉल पे दिल टूट गया इनका। लो फुल टॉस कर बैठे, मालूम था उनको कि इस पे विकेट तो मिल नहीं सकता। अब किस तरह से बचा जाए बड़े शॉट से, और लो फुल टॉस हो गई। तो कहां एक बैट्समैन वापस जा रहा होता, कहां वो वापस आके छक्का लगा दे आपको। आसिफ अली के अगेंस्ट एक गेंद शायद इनको थोड़ा सा काम आ जाए, वही है अगर ये फुल वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करें, क्योंकि आसिफ अली ज्यादातर टारगेट करते हैं, हमने देखा है मिड विकेट काउ कॉर्नर। तो अगर फुल इन वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप करेंगे तो शायद इनके लिए मुश्किल होगा। हमने इनको इतना ऐसा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कुछ मारते नहीं देखा। शॉट है इनके पास लेकिन इनके फेवरेट शॉट्स में से नहीं है वो। जी और अगर इनकी बॉडी की तरफ भी गेंद करना है तो फिर अच्छा तेज बाउंसर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल नवाज सामना करेंगे। इसे हवा में खेला, गेंद उड़ती चली गई। एक और छक्का। खासी देर के बाद स्ट्राइक मिला नवाज को और उन्होंने इस गेंद पे भरपूर वार किया। अब अपनी निस्फ सेंचुरी से सिर्फ एक स्ट्रोक के फासले पर। 11 छक्के लगा चुके हैं नवाज, मैक्सिमम है इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी भी बैट्समैन की तरफ से। ये 11वां छक्का था इनका। ये बॉल इस स्पीड पर, ये लेंथ जो है वो इतनी कारामद साबित नहीं होगी। बड़ा टाइम मिल जाता है मॉडर्न डे बैट्समैन को पीछे हटकर क्रीज का इस्तेमाल करके पुल करने का। या तो आप एक्सप्रेस फास्ट हो, मौका ही ना दें कि पोजीशन में आए बैट्समैन। शाहीन अफरीदी ने गेंद को जाल लिया। एक और महंगा ओवर। पिछले ओवर में 17 रन बने, इसमें 16, 160 पे 5। ग्यारह छक्के लगा चुके हैं। हैदर अली दूसरे नंबर पर हैं, वो भी इन्हीं के टीममेट हैं मोहम्मद नवाज के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की क्रिकेट का प्लान किया हुआ है नॉर्दर्न ने। ये 21 छक्के दो बैट्समैन के बीच में है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन दोनों एक ही टीम के प्लेयर। आज मैच नहीं होता तारिक साहब तो आप इतवार की शाम है, आराम से चहलकदमी के लिए जाते। मौसम भी अब तब्दील हो रहा है, शामें बड़ी अच्छी खुशगवार होती हैं यहाँ पर। नवाज की शानदार निस्फ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरी बार ये कारनामा अंजाम दिया। इससे पहले 30 रन बनाए, एक इनिंग्स 56 रन की खेली, फिर 41 की और आज 50 की। बहुत ही अच्छी बैटिंग, 4 विकेटें भी हासिल की हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए इनकी टीम की सिलेक्शन हुई, सही साबित कर रहे हैं। 88 की एवरेज है टूर्नामेंट में मोहम्मद नवाज की। ज्यादा छक्के और कम चौके लगाए हैं, ये अच्छी खुशायन बात है। पाकिस्तान के 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के हैं, जो दोनों अभी परफॉर्म करके गए हैं। इससे पहले 46-27 गेंदों पे शादाब खान, और अब नवाज की आपने जैसे बताया दूसरी सेंचुरी। इस वक्त नॉट आउट खेल रहे हैं 50 पे 33 गेंदों पर। ये अच्छा वार्म अप हो रहा है, तैयारी। यहाँ ये अच्छा यॉर्कर था शाहीन अफरीदी का।
ये ओवर बड़ी अहमियत रखता है। अगर यहाँ आसिफ अली खुल खेलने में कामयाब हो गए तो फिर इनकी टीम जो है 185 तक पहुंच सकती। लेकिन एक बार फिर सही हदफ पर बॉलिंग शाहीन अफरीदी की जानिब से, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं और अच्छी रफ्तार से भी कर रहे हैं। 142 और ये 140 की रफ्तार से ये मुश्किल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में आमतौर पर पहला और तीसरा ओवर और फिर 17वां और 19वां या 18वां और 20वां। मोहम्मद मूसा आज नहीं खेल रहे, बहुत महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करने का इनको तजुर्बा रास नहीं आया और ना ही पावर प्ले में। अच्छा मिक्सअप है और वाइड दे दिया, लेकिन आइडिया सही था। 2 यॉर्कर लेंथ्स, उसके बाद एक शॉर्ट बॉल। अंपायर ने गालिबन ये सर के ऊपर से गई है, इसकी वाइड दी है या लेग स्टंप का तो नहीं लग रहा। जी हाँ, बैट्समैन के पीछे से अगर गेंद जाए तो वो वाइड नहीं होती, लेग स्टंप के बाहर से आप वाइड दे सकते हैं। और ये खासी हद तक स्टंप्स के ऊपर से गई, लेग स्टंप के ऊपर से। शाहीन अफरीदी का यही नुक्ता था, लेकिन प्रोफेसर साहब का ख्याल है कि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। अच्छा यॉर्कर, उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन अफरीदी। उन्होंने दोनों ही खिलाड़ियों को बिल्कुल भी इस ओवर में बाउंड्री बॉल ऑफर नहीं की। पिछला ओवर हालांकि महंगा था। देखिए यही फर्क होता है पेस का। जब आप वेल डायरेक्टेड बॉल करेंगे ऐसी पेस पे 142 पे, कंपेयर टू इससे पहले इमरान खान सीनियर 128 पे कर रहे थे, टाइम बहुत कम मिलता है बैट्समैन को ये डिसाइड करने का कि वो किस तरफ खेलना चाहेगा या अंडरनीथ द बॉल आ पाए। यहाँ ये सीधा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा मूव अराउंड करेंगे जैसे कि ये। जहाँ हालांकि बैट्समैन यहाँ पर मूव कर रहे थे, लेकिन शाहीन जो हैं उनकी नजरें विकेट पर ही थी, क्योंकि विकेटें अपनी जगह से नहीं हिलती। तो नजर होनी आपकी विकेट पे चाहिए, ना कि बैट्समैन की इस मरहले पे पैरों पे। तो अपनी लाइन को छोड़ा नहीं है शाहीन ने। अक्सर देखा गया जब बैट्समैन मूव करना शुरू करता है इन ओवर्स में, तो बैट्समैन उसके पीछे चले जाते हैं स्टंप्स की बजाय। बहुत ही शानदार ओवर शाहीन अफरीदी का। उनकी नबी तुली बॉलिंग, सिर्फ 5 रन उन्होंने 19वें ओवर में दिए। 165, 5 विकेट के नुकसान पर नॉर्दर्न। रोहेल और सोहेल तनवीर इसके बाद हैं। आई थिंक अगर कोई विकेट गिरती भी है तो शायद सोहेल तनवीर को बारी पहले मिलेगी। आखिरी ओवर है, कम से कम टारगेट तो इनका ऐसा ही होगा कि कोई डबल फिगर्स में रन हासिल किए जाएं, उससे कम जो है सौदा ना हो। 10 से 15 रन तो हो, 180 हो सकता है अगर 15 हो जाएं। हारिस रऊफ ये बैटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और छू लो गगन तुम उड़ के और पीछे न देखो मुड़ के। आसिफ ने छक्का लगाया 8 गेंदों के इंतजार के बाद। जी हाँ, डायरेक्शन का और पेस का फर्क साफ जाहिर है। इस पेस को पसंद करेंगे आसिफ। डायरेक्शन का भी बड़ा रोल होता है। गेंद लेग स्टंप लाइंस थी और इसको खेल दिया बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड पे, जिसकी शिकायत है रिजवान को। वो चाहते हैं कि स्टंप्स में बॉल किया जाए। एक और अच्छी पार्टनरशिप, 14 गेंदों में 27 रन दोनों ने बनाए हैं। दरअसल आसिफ ने 2 छक्के लगाए हैं, नवाज ने 3।
इस बार मौका है, फील्डर आ चले थे गेंद के नीचे। शाहीन अफरीदी और अमीन दोनों ही क्या ये पहुंच गए? नहीं, अंपायर ने वहीं आउट करार दे दिया कैसर ने। तो नवाज पीछे रह गए, लेकिन टीम की खातिर उन्होंने अपनी विकेट कुर्बान कर दी। कैच की अपॉर्चुनिटी तो मिस हुई, लेकिन डायरेक्ट हिट जब आई तो आउट हो गए। रन आउट कोई चांस नहीं था आने का उनको वापस क्रीज में। आप अपना रोल कहीं से भी प्ले कर सकते हैं एज अ टीम मेंबर। अगर कैच नहीं पहुंचा या आप कैच तक नहीं पहुंचे तो आप, खेल चल रहा है, सीधा नॉन स्ट्राइकर पे गेंद लगी और आसिफ आउट हो गए, वो नवाज आउट हो गए। 172 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आउटसाइड एज और रिजवान के सामने से गेंद चली 4 रन के लिए। आसिफ अली वार करते रहेंगे। इस बार ज्यादा दूर नहीं थी मोहम्मद रिजवान की पहुंच से। यूजुअली रिजवान पहुंच जाते हैं, थोड़ा टाइम नहीं कर सके अपनी डाइव को। ये पिछले मैच में भी एक कैच के लिए ये दोनों हाथों से गए थे, इससे मिलता जुलता ही वो भी एक्शन था। तो बेहतर नहीं होता कि एक हाथ आगे बढ़ाते, उससे आपकी रीच बढ़ जाती। शॉर्ट थर्ड पर, फाइन लेग पर एक फील्डर है। एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड, स्लो डिलीवरी। 1 रन दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और लगता है कि नहीं पहुंच सकेंगे। टीवी अंपायर या मैदान पे ही आउट करार दे दिया गया नासिर हुसैन की जानिब से। आसिफ जो है उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, खुद ही वो जान गए थे। थ्रो जरा सा वाइड आई, लेकिन बहुत पीछे थे। अच्छी बैटिंग की आसिफ अली ने। 11 गेंदों में 21 रन बनाए, 177 पर 7। Just middle. 2 remaining. सोहेल तनवीर मैचेस देखें 366 4 इनसाइड एज। रन्स इंपॉर्टेंट है, कहां गया बॉल वो इसकी अभी इतनी अहमियत नहीं, बाउंड्री पार होनी चाहिए। और इस चौके के साथ 181 के जोन में आ गए। इस ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन रन्स भी आते रहे हैं। पहले छक्का लगा और अब इनसाइड एज पर चौका। अच्छी गेंदों पर भी रन्स बनते हैं। यही इस फॉर्मेट का सितम है बॉलर्स के लिए, और यही कप्तान रिजवान अपनी मुस्कुराहट के जरिए बताना चाह रहे थे मोहम्मद इमरान को, जो बिल्कुल नौजवान हैं। एक बार फिर आहिस्ता गेंद थी और बीट किया सोहेल तनवीर को। तो ये 20 ओवर्स का मरहला मुकम्मल हुआ। नॉर्दर्न की टीम ने 181 रन बनाए, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए और अच्छा फाइट बैक किया उन्होंने। पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें उड़ा दी थी
फिर 55 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन शादाब और नवाज ने अपनी टीम की उम्मीदों की शम्मा गुल नहीं होने दी और मुकाबले पर ला खड़ा किया है उन्होंने उम्दा पार्टनरशिप के जरिए केपी की मजबूत टीम के खिलाफ। एक स्टेज पर 83 पे 4 थे नॉर्दर्न, यानी आखिरी 7 ओवर में इन्होंने 98 रन ऐड किए हैं और इसमें ज्यादातर जो जिम्मेदारी और डैमेज किया ऑपोजिशन को वो थे नवाज और शादाब की पार्टनरशिप ने, और फिर आसिफ अली के 21-11 रन पे 11 गेंदों पर। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की। इमरान सीनियर ने अपने आखिरी स्पेल में एक खिलाड़ी को आउट किया और अरशद इकबाल खासा महंगे रहे। इस्तारुल्लाह और अफरीदी जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने एक मरतबा फिर परेशान किया और एक खिलाड़ी आउट किया मुखालिफ टीम का। इफ्तिखार और मोहम्मद इमरान कोई विकेट हासिल नहीं कर सके और दोनों खासे महंगे भी साबित हुए। ये आप देख सकते हैं आज नॉर्दर्न ने पहले बैटिंग की। अली इमरान आए थे नासिर नवाज के साथ और पहली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए इस यॉर्कर पर और फिर ये धरम भरम कर दिया स्टंप्स को शाहीन अफरीदी ने हैदर अली की। उसके बाद उमर अमीन आदिल अमीन के हाथों कैच आउट होने से बचे। नासिर नवाज जो हैं वो स्ट्रोक्स लगाते रहे लेकिन ज़्यादा कन्विंसिंग नज़र नहीं आए, उनका कैच भी गिरा इस अरसे में। उमर अमीन आउट होने वाले तीसरे बैट्समैन थे। 53 के स्कोर पर ये विकेट गिरी। आसिफ अफरीदी जो है उम्दा बॉलिंग करते रहे लेकिन विकेटें गिरने का सिलसिला दूसरे एंड पर भी जारी रहा। और ये इमरान जो आखिरी स्पेल में खासा महंगे रहे क्योंकि शादाब जो हैं वो आज अच्छी बैटिंग फॉर्म में थे। शादाब के लिए बैट्समैन की हैसियत से ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है। मोहम्मद नवाज के साथ उनकी ये पार्टनरशिप थी जिसने अपनी टीम को सरनिगूं नहीं होने दिया और ये बहुत बड़ा छक्का था। गेंद दूर गई और बाउंड्रीज आसानी के साथ आती रही यहाँ तक कि ये कैच आउट हो गए इमरान सीनियर के हाथों। कप्तान की इनिंग्स खेली शादाब खान ने। फिर इस फुल टॉस को मैदान के बाहर आसिफ अली ने पहुंचाया। मोहम्मद नवाज ने भी एक छक्का लगाया। ये शॉर्ट गेंद पर एक बार फिर छक्का लगा और उसके बाद ये रन आउट हुए। शाहीन अफरीदी ने डायरेक्ट थ्रो फेंकी, मोहम्मद नवाज पीछे रह गए और अंपायर ने वहीं से ही इशारा दे दिया उन्हें वापसी का। यहाँ एक और खिलाड़ी रन आउट हुए, इस बार आसिफ अली खुद थे। बाउंड्री लाइन से मुसद्दिक ने थ्रो की और रिजवान ने बाकी का काम किया। तो अब सना की तरफ चलते हैं जो मैदान में मौजूद हैं। नवाज बहुत ही ज़बरदस्त, एक और 50 आपने आज की। इस टूर्नामेंट में 59 की एवरेज है, सबसे ज़्यादा छक्के मार चुके हैं। पहली दफ़ा एक T20 टूर्नामेंट पे एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह से देख रहे हैं हम आपको। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह अपने आप पे बिलीव था कि मुझ में एबिलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से डिलीवर नहीं कर सका था मैं कभी भी। बट इस दफ़ा जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रही है तो आई एम वेरी हैप्पी और कोशिश करूँगा कि इसका कंटिन्यू रखूँ। और एज एन ऑलराउंडर जनरली कुछ कभी कभी ऑलराउंडर्स की अपनी प्रेफरेंस होती है, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि बैटिंग में मौका मिल रहा है या एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप पसंद करते हैं? देखिए मैं तो दोनों चीज़ें पसंद करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर मुझसे टीम जो एक्सपेक्ट करती है वो बॉलिंग बैटिंग दोनों चीज़ों में एक्सपेक्ट करती है, तो कोशिश होती है कि मैं दोनों चीज़ों में डिलीवर करूँ, अपना 100% दूँ और एफर्ट करूँ उसके लिए। और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी जब आप और शादाब आए, अच्छी पार्टनरशिप लगी। आपको लगता है ये टारगेट काफ़ी होगा आपके लिए? आई थिंक जिस स्टेज से हम आए हैं 182 हमने किया है तो इट्स वेरी गुड टोटल। आई थिंक हमें जस्ट एक डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे अर्ली 1-2 विकेट्स लें और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखें और ख़ुद गेम में डोमिनेट करें। और वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की उम्मीद हम आपसे रखते हैं। कैसी तैयारी आपको लगती है इन पिचेस पे जो मिली हैं आपको और वर्ल्ड कप के लिए यूएई में?
जी बिल्कुल, जिस तरह की पिचेस थी पहले, थोड़ा सा काफ़ी मतलब बिल्कुल सिमिलर टू यूएई, जैसे यूएई में पिचेस होती हैं वैसे ही थी। तो अच्छी तैयारी हो रही थी बैटिंग के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से भी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आई थिंक। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी हाँ, तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को 182 रन बनाना है 20 ओवर्स के खेल में 9.10 के औसत से। तो एक वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा केपी की इनिंग्स। Northern, after the 20 overs, 181 for 7. And after the start that they had with a couple of wickets in the first over, it was a good fight back. We know that they bat deep with Mohammad Nawaz with 51 of 34. Shadab, 46 of 27. Asif Ali chipped in with 21 of just 11. So they made sure that they got to a target which will pose problems.
Mohammad Nawaz, he's been in good form with the bat, strikes it cleanly, got that one away. And then once you just go into his zone, which is slightly fuller, he'll make you play. Very strong leg side, 3 maximums in that 50 strike rate, 150, so an innings of top quality. Shaheen Shah Afridi started off with 2 wickets in the first over, then came back in his second spell, went around the park. But the spinners did a job. Esrarullah 1 for 9, Asif Afridi 1 for 22. 20 overs, 181 for 7. Khyber Pakhtunkhwa wanted to chase, and now they'll have to chase well. And depends a lot on Rizwan. Rizwan normally is always in form in T20 cricket. And this last couple of years, he's been in sublime form. And with him, it's going to be Esrarullah. Does strike the ball, likes to go after the bowling. Does hit the ball really hard. Obviously, they'll miss the experience of Fakhar Zaman. Sohail Tanveer, well experienced with the ball. He's played T20 all over the world. Mikey, 181 looks pretty good. I think it's really good. And look, at the 9th over, they were 55 for 4, so they were nowhere. And to score 100 off the last 7 is quite exceptional. So I think it's a really good total, 182 to get to win. Tanveer is going to be a bit of a handful at the top. I quite like that little interaction. Just one word said to the captain. He went straight back to his end of his run-up. So they are both on the same page, which is good. They want to get Rizwan. They need to get him early. He's key in my book. Next play. Plays the call. And straight away, Rizwan off and running. Quick between the wickets. He's like a little motor, Mohammad Rizwan. He just buzzes all over the place. I like watching him in the field as a captain. He's always moving guys left, right and centre. Look at that, straight out of the blocks. As soon as he hit it, he caught his partner by surprise a little bit, but no dramas. But if he gets going and he keeps running like that and sprinting up and down and picking up the 1s and the 2s and the odd boundary, then that makes a massive difference to their team. Now this should be interesting. Esrarullah likes wit on the offside. Sohail Tanveer will swing the ball back into him. Must be careful of those pads. Turned away a single leg side. You can see the thought process of Sohail Tanveer trying to get the ball full with that swing. Not as quick as he used to be. When he was swinging the ball in his younger days, he used to swing it a bit further as well, but he's still a handful. He's always going to be at you, always going to be there and thereabouts. He was quite potent when he was a bit younger, but I've got enormous admiration for him, the way he just kept going and kept going. Mohammad Rizwan is not quite happy with some action behind the bowler, so he's one of those guys who spots a few things. As soon as the ball hits his bat, he's off. Duracell. Last time they batted, he just pushed the ball around a little bit like he's doing at the moment. And it took a little bit longer before he got the pace and the tempo of this pitch. Now, I think it might be coming onto the bat quite nice at the moment. I think it was a little bit more difficult first up this morning. I think it seems to be better to bat on now. But him getting the cadence, the tempo of the pitch is really important for the rest of the team because of the information he'll pass on. And again, they're off. A bit of frustration creeping in the fielding side. There's a bit of chatter about these singles being gotten every delivery. And you can hear the chat. We're not really happy with them being able to play tip and run. And the bowler, being as experienced as he is not going to worry him too much. But a less experienced bowler will be concerned because of having to change constantly to the left and right-handed line.
Now, deep fielder on the offside is almost like a deep gully on the fence or a very, very square third man. And that is because Sohail Tanveer, well, as you said, has a lot of bit of pace. And he gets the ball to swing, so it's more likely that the cut shot or that little push will go square rather than fly through the slips or go down to that vacant area a lot finer. So an interesting field set. Obviously, it's been thought about a lot. A really decent first over, just 4 off, it's 1 done. One. 3,459. That is plenty of runs in T20 cricket. Iftikhar Ahmed, 2,500. So there's plenty of runs in that batting order. Yes, it does go under the radar because you wouldn't say they've got some big names. Mohammad Rizwan, yes, Iftikhar maybe, but otherwise you wouldn't look down the order and say, well, big names in there. The problem they do have is that Mohammad Rizwan is the only one who's playing at the moment for them with any real confidence and with any consistency. Haris Rauf the other day bowled a magnificent first over, got the ball to shape. Likes bowling under light, so just about that time. Radar not quite right. J. Dot super over. That's the radar you want straight away. Yeah, not bad at all. No time to warm up. Hit the stump straight away. Time through the offside, pace on the ball, worked with to the fence. Brilliant. Good speed too from Haris Rauf. That's 148 k's per hour, but just allowing it to come to him, eyes over the top of that ball and just running it off the face. That's exactly the way you use the pace of the bowler. The outfielder's on the slow side if the ball is hit airborne because the ball will plug. Other than that, it runs pretty well. Short again this time. Not being able to pierce the gap, but with the pace that Haris Rauf has, he can, Israrullah and Rizwan can work that around. He's frowning a bit. Sometimes that seems like you don't feel in top of your rhythm. And sometimes your pace is much quicker than you think it is. So he's 147, 148, the last 2 deliveries. So he's hurling them down. That rain, by the way, that we had until about 3 o'clock this morning. I know, Baz, you were out on the roads. Were you? No, perhaps you weren't. That's just going to make the ball just plug a little bit because the outfield is now a little bit softer than what we had at the start of this edition not so long ago. Yeah, need to be tight, need to be really tight. He is bowling at quite, well, top speed, 149, but need to be pretty straight.
I think we've got to watch him. This pace is quite brilliant. His first over. This is going to surprise a batsman, I promise you. At this sort of pace, you're hitting 150 k's per hour in your first over. That means you're cranking it up big time. He's probably going to bowl. He bowled 2 last time. No, he only bowled the 1 last time. He should have bowled 2 last time. He only bowled the 1. They stayed with a set plan. Edge flies to third man. Well, if he's out of rhythm, he's starting getting the pace up. 143 clicks that time round. So last time what they did is Shadab actually, I was certain he was going to keep him in, but he didn't. He pulled him out after 1 over and brought him back at the death for the 3. Captain's having a chat to him now. Just wanting third man a little bit finer. Oh, short ball. That was quick as well. He's holding it cross seam, I reckon, and banged it in. Mr. Arullah looked away. Yeah, it's the good old-fashioned no-look little pull shot. The no-look pull. Here we go. I'm out of here. Oops. He's middled it and been able just to bunt it leg side. Just a little bit of a periscope, just sticking the bat up there. I think he was trying to get everything out the way, really. That is top speed. That's going to get you hopping around. Can you touch 150 though? Speed and accuracy that time. It's a good over. 12 without loss. Haris Rauf, Sohail Tanveer, Nawaz, Shadab Khan, so plenty of international experience in that bowling lineup. That time of the day or early evening. So you've got that pace of Haris Rauf and now just swing from Sohail Tanveer. This is the last ball, the last over. Inside edge onto the pads. He thought about the 1. It was 148 k's per hour. A bit of excitement there for Haris Rauf. He got quite animated and had a little bit of a chat after. I love seeing this sort of interaction with a couple of seasoned pros. A couple of teammates, of course. A couple of really important players in the World T20. Not too far away. No ball! Oh, big call of no ball. It's down the leg side anyway, but free hit. We've seen this a bit in that first innings, and now Northern just returning the favor. Just going over by some distance, actually. He'll be annoyed with that. That's a long way over. Yeah, just a little bit of a kick at the end of his mark, as it was called. End of a follow-through, I should say, as it was called. Scan the QR code to win exciting prizes just for men. Free hit. Short Israrullah with that unorthodox pull shot, and it's gone a long, long way. That is a really good hit. Very good connection. Again, it was a bit of a no-look shot.
But he can certainly have a good look at where it finished. Good solid swing. Didn't watch it onto the bat, but we can watch it just fly. One bounce, and there it goes. New balls, please. So the ball's come back, I think. Has it come back? Yes, it has. So hasn't been lost. It's going to be sanitized and be ready to go again. Huge match coming up, ATF Southern Punjab versus his home city Central Punjab, and then there's a couple of days off, and then we go to Lahore. Match 19 and 20 starts from October 6th. Yeah, tomorrow's a travel day. Everyone's heading down to Lahore. Obviously the crew have got a rig tomorrow and also rig the next day. Bit of confusion. Again, a clean pickup, and that might have been interesting. So he's conceded 7. 3 deliveries at his ball. Ishrarullah will be looking to flipping over the leg side. That's good line. That's a good line for Ishrarullah. The ball coming back in, so not a lot of room on the offside. And have a look at this little piece of timing, and then just right about here, if he picked it up here. Great footwork. Great unintentional footwork. They're going at just a shade over 7 at the moment. They need to, from here, go at 9.5. Now, every time they don't go at that number, 9.5, then obviously that climbs. That means they've got to be there and thereabouts, right at the start of the innings, and that's always the difficult thing. You can't look to play catch-up in T20 cricket. You've got to go with it right from ball 1. Slow one. There's a great article where Josh Butler talked about how he now goes about chasing in T20 cricket. He used to be very concerned about the run rate and keeping up with the run rate all the time, and then he looked around at the big players in T20 cricket, and they backed themselves to get a couple of big overs. So even if they fell behind the rate, they were able to make that up because of the power that they possessed. Providing it's not too far behind. Yes, you've got to stay in touch. That's the important thing. Leg side, flipped away. That'll go to the fence. Boundary to end the third. It's 23 without loss. Bowling, Sakalo. Change right arm over. Wear your passion. Create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store right now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 2021 shirt signed by the Pakistan squad. Well, better get that done before 15th October, otherwise the sun will set on that.
Salman Irshad starts off quite well, but last ball, last over, Israrullah with a good piece of timing. Yeah, nicely whipped away. Very, very strong on that side is Israrullah. That's what they needed. Boundaries at the start of an over or boundaries at the death. That makes a massive difference, at the death of the over, I should say. It makes a massive difference if you're in a situation where you're chasing a big total. I said this the other day, if you haven't faced him before, haven't faced him much, it's going to be just a little bit different. Suddenly that ball going behind the bowler's back. As a batsman, you'd like to see the ball all the time in the bowler's hand as you're getting ready to face him as the bowler's running in. But when it suddenly disappears behind his back, it comes from nowhere at the last minute. Some of the quickest bowlers that they've ever been, actually. Some of the batsmen have said over the years that they haven't found them lightning quick because every single step they've taken in their run-up, you've seen the ball in the hand, and also it's been clearly visible in their entire delivery, their action. Whereas someone like a Jeff Thompson, in the old days, your dad would have found that out, Baz. And suddenly he's bowling a million miles an hour because it comes from nowhere from behind the back. And when Malinga started, nobody could locate that as well because it's coming from a completely different angle. And you need a lot of getting used to with that sort of angle which he bowled at. Fidel Edwards is another one batsmen struggle with initially because it disappears behind his back before he delivers. People talk about Sean Tate as well when he covered the ball as he released it. Into the offside, in the air, and come back for two. Okay, so you can see the ball there, clearly visible to the batsman in his hand, in his fingers. Now just have a look, you're getting ready and suddenly it goes, oh, where's it gone, where's it gone? Oh, there it is, it's come out again. So it's the sling, but also from behind his back, so suddenly it disappears, and also the awkward action, so it's a bit of a double whammy. If you haven't faced him before, or haven't faced him much. Hits it over the top, gets a lot on that. One bounce into the fence. 32 without loss. अच्छा आगाज़ किया है इसरारुल्लाह ने। सिर्फ 16 गेंदों में उन्होंने 25 रन बनाए हैं। अब तक 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। रिजवान सेकंड फील्डर रोल में इस वक्त, जबकि दिन डूब रहा है। पतंगबाजी मौसम खिजा में ये तो मौसम बहार का खेल समझा जाता है। लेकिन सब चलता है। T20 क्रिकेट में भी सब चलता है। अलबत्ता रिजवान जो हैं ये वक्त ले रहे हैं। सुहेल तनवीर आज भी खासे महंगे साबित हुए, इसलिए हारिस रऊफ एक और ओवर करेंगे इस पावर प्ले में। और हमने यही देखा है यहाँ कि वो गेंद को मूव करने में कामयाब हुए हैं। नई गेंद के साथ
नहीं कनेक्ट कर सके। रिजवान को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, बिल्कुल रूम के लिए उन्हें क्रैम्प किया। अपनी रिवायती शॉट खेलना चाह रहे थे रिजवान, और ये स्लोअर वन था जिसको उठा दिया था। स्पेस मिल गया था, रूम भी मिल गया था। इसरारुल्लाह आज अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, साथ दे रहे हैं रिजवान का, जो आज थोड़े से कदरे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसरारुल्लाह, लेकिन हाथ और नज़र जो है वो काफ़ी रहती है। पिछले मैच में भी इनिंग्स अच्छा आगाज़ किया था, उसके बाद ज़्यादा आगे तक नहीं जा सके जिसकी ज़रूरत है। अच्छा मौका है, बैटिंग विकेट है, कप्तान आपके हमरा मौजूद हैं। और शानदार स्ट्रोक खेला रिजवान का, ये फेवर्ड एरिया है। जोरदार छक्का लगाया मोहम्मद रिजवान ने इस हारिस की तेज गेंद पर विद द स्विंग। इस बार कोई गलती नहीं की रिजवान ने, अच्छी बेस बना लेते हैं, लेंथ जल्दी पिक करते हैं और फिर अपने खिलाड़ियों का कमाल। यहाँ पे खिलाना खतरे से कम नहीं होता क्योंकि नतीजा हर बार यही होगा। टपाल्टी का ये लम्हा है, एक और अच्छा स्ट्रोक। इस बार रन एक ही पर इक्तिफा करना पड़ेगा। अच्छा आगाज मिल गया है, यहाँ विकेट लिए बगैर चारा नहीं होगा। हारिस रऊफ सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिली भी है नई गेंद पर। अभी तो केपी की पतंग चढ़ी हुई है, देखते हैं कि कौन इसको काटने में कामयाब होता है। एरियाज पिक करने पड़ेंगे अगर रिजवान को आउट करना है। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप वो हल्का सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, चेस करने जाते हैं, तो वो भी एक हरबा हो सकता है इस्तेमाल। एक बार फिर देखिए खड़े होकर हमने बल्ले को स्विंग किया था और इस आखिरी गेंद की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा थी। ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, अपने पैरों को बिल्कुल हरकत नहीं देते। वो जो एक बैट्समैन का अंदाज होता है कि बैक एंड क्रॉस जाया जाए, वो पहली मूवमेंट होती है, आपको नजर नहीं आती इनके खेल में। वो खेलने भी लेग साइड पे ड्रैग करने जा रहे थे, हालांकि अगर बैकफुट पंच मारते तो वो एक अच्छी शॉट सिलेक्शन होती। तो ये ओपनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर स्विंग हो रहा है अच्छी पेस के खिलाफ, आपको टेक्निक के साथ शॉट सिलेक्शन भी बहुत मैटर करती है। इस वक्त बैटिंग के लिए हालात बेहतर होते जाते हैं और ये देखिए स्पीड के लिए भी हालात बेहतर हैं। 142 से शुरू किया था, 2 बार 150 को भी छू चुके हैं हारिस। इस बार हवा में खेला सीधा हाथों में और हारिस रऊफ ये विकेट हासिल करने में कामयाब ठहरे। ये आज की शाम की सबसे तेज गेंद थी। जिस विकेट की तलाश में थे वो हासिल कर पाए। एक बार फिर सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया, स्लाइस कर दिया था और सीधा कैच, क्या पॉइंट एरिया पे। और ये सेलिब्रेशन बताती है कि कितनी मेहनत की थी, प्लानिंग की थी हारिस रऊफ ने और आखिरकार कामयाब हुए ये विकेट हासिल करने में। यहाँ नासिर नवाज ने कैच लिया और यहाँ देखा जा सकता है कि कितनी कीमत थी और कितनी अहमियत थी रऊफ के लिए। इस विकेट की 25 बनाए इसरार ने, 39 पर 1।
खैबर पख्तूनख्वा को पहला धचका लगा। आउट होने वाले बैट्समैन इसरारुल्लाह, जो कि आज के दिन की सबसे तेज गेंद पर चलते बने साहबजादा फरहान आए हैं। इस टीम के सबसे मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन साबित हुए हैं और वन डाउन पोजीशन पर आकर उन्होंने जिम्मेदारी ली है और हर बार रन्स बनाते हुए नजर आए। ये पैड पर लगी इनसाइड एज था, अंदाजा हो गया था जल्दी यहाँ सलमान इरशाद को भी। एक रन का और इजाफा। हारिस रऊफ ने पिछले ओवर में बड़ी तेज बॉलिंग की, बिल्कुल उन्होंने तजुर्बात करने की कोशिश नहीं की। रिजवान ने जरूर छक्का लगाया था, लेकिन ये देखिए स्लाइस कर बैठे और अच्छा कैच लिया। नासिर नवाज ने एक लम्हे पर उनकी नजरें हट गई थी, यही उन्होंने तासुर दिया, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्ट कैच था ये, रिफ्लेक्ट एक्शन में, और इम्पोर्टेंट विकेट थी, अच्छे लग रहे थे इसरारुल्लाह। इस बार दबाव में लिया, वहां पर सोहेल तनवीर थे, फील्डर को पिक कर लिया था। अच्छी रनिंग भी करते हैं ये दोनों, क्योंकि बहुत अरसे से एक साथ खेलते रहे हैं रिजवान और फरहान। लेकिन विकेटें ज़रूर हासिल करना पड़ेंगी, इसके बगैर आप कंटेन नहीं कर सकेंगे। पिच ऐसी है, आउटफील्ड बारिश के बावजूद तेज़ है। से खेला, गेंद का अंदाज़ा नहीं हो सका सोहेल तनवीर को भी, और ये 4 रन्स के लिए निकल गई। बिल्कुल बल्ले की टो पर लगी थी मोहम्मद रिजवान की, लेकिन अंत भला तो सब भला। 4 रन चाहिए थे और वो हासिल कर लिए इन्होंने। बहुत जल्दी शॉट खेल दी थी, जोर से मारने गए थे और बिल्कुल बल्ले का जो एंड का हिस्सा है वहां पे जाके कांटेक्ट हुआ था। ये देखें, लेग साइड को टारगेट कर रहे थे, लेकिन सीधा 4 रन हासिल करेंगे। जब स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलर बॉलिंग करते हैं तो होता है अक्सर कि गेंद लगती है बल्ले की टो पर। इस बार कमजोर शॉट खेला और ये कैच ले लिया सोहेल तनवीर ने। आखिर में सामने की जानिब झुकना पड़ा, लेकिन पहुंच गए गेंद तक। रिजवान जो है मुसलसल 2 शॉट्स वो फॉल्स खेल बैठे। जरूरत नहीं थी इसकी, गैर जिम्मेदाराना शॉट था ये रिजवान की जानिब से। किसी पोजीशन में नहीं थे कि इसको लेग साइड पे पुल करते, और इसी वजह से बॉल वहां गया भी नहीं। अच्छा कैच था, टिप कर रहा था, और एक और बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न को। केपी के कप्तान की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, और मोहम्मद रिजवान 17 बना के वापस। केपी 45 पे 2। दो विकेटें गिरी हैं सिर्फ 6 रन के इजाफे में, और इफ्तिखार अहमद को इसलिए मैदान में उतरना पड़ा। 2546 रन इनके क्रेडिट पर हैं। स्ट्राइक रेट 121 का। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, इसलिए सेंचुरी के मौके कम ही मिलते हैं। T20 में चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। रिजवान को आउट करने के लिए किसी भी फॉर्मेट में अच्छी गेंद दरकार होती है बॉलर को, और यहाँ पर देखिए मुसलसल 2 शॉट्स इन्होंने ऐसे खेले जिनको मिडल नहीं कर सके। यहाँ गेंद बमुश्किल सोहेल तनवीर के हाथों तक पहुंची, और ऐसा तासुर मिला जैसे सलमान इरशाद के एक्शन को पिक नहीं कर रहे थे। जो स्लिंगिंग एक्शन था, राउंड आर्म,
बिल्कुल इसराउल्लाह पे भी मैं ये बात करी थी कि अच्छे बॉलर्स और जब अच्छी पेस से बॉलिंग हो रही हो तो उसके खिलाफ शॉट सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। और रिजवान ने भी यही किया कि इसको ऑफ साइड पे खेला जा सकता था, लेकिन वो ज़बरदस्ती फोर्स करने गए पुल शॉट को। और जैसे सलमान इरशाद का एक्शन है, वो एंगल के साथ भी बाहर ही बॉल जाता है, तो आसान नहीं होता जब तक कि आप लाइन में आके स्विंग कवर करके लेग साइड पे ना खेलें। आसान नहीं है ये शॉट खेलना अगेंस्ट द स्विंग। एक बार फिर फुल लेंथ गेंद जो कि खाली गई। अच्छा ओवर, सिर्फ 6 रन दिए सलमान ने, 45 पर 2। अच्छी खुशगवार शाम है यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 2 विकेटें एक के बाद दीगरे गंवाई हैं, जिसके सबब वापस आने का मौका मिला है यहाँ नॉर्दर्न को। थोड़ी इनकी भी बात होनी चाहिए रोहिल नज़ीर की। ये पाकिस्तान शहीन का ऐलान हुआ है दौरा श्रीलंका के लिए, उसमें ये जगह नहीं बना सके। मोहम्मद हारिस और सलमान विकेट कीपर होंगे उस दौरे में। 7 रन से ताल्लुक है सलमान का। अंदर रखूं और थोड़ा। अगर हारिस के साथ हम मवाजना करते हैं इनका, तो विकेट कीपिंग शायद दोनों की एक ही जैसी है, लेकिन जो एक बैट्समैन के तौर पर ज्यादा पूरे एतमाद हैं मोहम्मद हारिस। केपी ने अगरचे अब तक उनको मौका नहीं दिया है खेलने का। ये T20 टूर्नामेंट स्क्वाड का हिस्सा है। पिछले साल यहीं पर उन्होंने डेब्यू किया था जब मोहम्मद रिजवान नहीं खेले थे। काफी अरसे तक रोहिल नज़ीर एज बैकअप कीपर तैयार होते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जाहिर है थोड़ी एक प्लेयर को भी ये होता है कि नहीं सिलेक्ट हुए, बट एक अच्छा मौका है इनके पास। सीजन आ रहा है आगे डोमेस्टिक। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज रिजवान ने उठाई हैं, लेकिन ये वाली नहीं है। वो 2 बॉलें थी जिसपे कंट्रोल में नहीं लगे रिजवान, और खेलते साथ ही उन्हें मालूम था कि उन्होंने गलती कर दी है। फोर्स्ड शॉट थी ये, शॉट सिलेक्शन भी अच्छी नहीं थी इस बार इनकी। इस बार खेला इसे पॉइंट के ऊपर से, यहाँ पर दूसरे रन के लिए वापस चले आएंगे। मोहम्मद रिजवान एक ऐसे बैट्समैन है जो इतनी आसानी से अपनी विकेट गंवाते नहीं हैं, बहुत कीमत लगाते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं आपको मिलेंगे, नासिर नवाज या पहले वक्तों में चले जाएं शाहिद आफरीदी, जो बार बार बॉलर को चांस देते थे। ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि सलमान इरशाद का हाथ जो है वो तकरीबन अंपायर के सामने से आ रहा था, मुश्किल हो जाता है कई बार पिक करना। मुश्किल होता है, लेकिन वो बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि जिसके अगेंस्ट द लाइन जाना वो बहुत मुश्किल है। और यही मैं बात कर रही थी कि रिजवान जिस तरह रीड करते हैं बॉलर्स को, ये वाली शॉट क्यों अडॉप्ट की उन्होंने इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, बट ये बहुत मुश्किल शॉट है ऐसे एक्शन के अगेंस्ट खेलना। मोहम्मद नवाज जिन्होंने अच्छी बैटिंग की, उससे इनके बॉलिंग में भी इजाफा होगा, इनके एतमाद में। शादाब और नवाज दोनों को बॉलिंग में एतमाद की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इन दोनों को फॉर्म, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि शारजाह में भी गेंद के टर्न होने के आसार हैं और दुबई में भी। इस पर हम बात करेंगे अगले ओवर में 7 के बाद 50 पर 2।
ये खुलासा है इस मैच का। 181 रन बनाए नॉर्दर्न ने, नवाज ने निस्फ सेंचुरी बनाई, शादाब सिर्फ एक स्ट्रोक के फासले पर रह गए निस्फ सेंचुरी से। शहीन ने 2 विकेटें पहले ही ओवर में हासिल की और अब 13 ओवर्स में 132 रन बनाना है, तो एक नज़र रखना होगी इस मतलूबा रन औसत पे भी। एक कदम और हो जा, एक कदम और हो जा, थोड़ा बस। दोनों तरफ से स्पिन का अटैक। शादाब खान लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग करते हैं और इस वक्त पवेलियन एंड से, बल्कि फार एंड से गुगली से ही आगाज किया शादाब ने। साहबजादा फरहान अभी टॉप रन स्कोरर पे नजर डालें तो चौथे नंबर पे हैं। अच्छा स्ट्रोक लगाया, अली इमरान पहुंच गए थे और जल्दी संभल भी गए। अच्छे आउटफील्डर हैं अली इमरान। ये जरा सा गो स्लो एरिया है। 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड शॉट खेलने के मूड में नजर आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो तलाफी कर सकते हैं आगे चलकर। चौके छक्के लगाने की सलाहियत है। पिछले मैच में आसिफ अफरीदी को जल्दी भेज दिया गया था, उन्होंने पांसा पलट दिया था खेल क्या। बिल्कुल, फरहान भी अटैकिंग खेलते हैं, इफ्तिखार इतने बाख्तियार हैं कि जब चाहें बाउंड्री लगा सकते हैं। मुसद्दिक आने वाले हैं, आसिफ अफरीदी भी अभी लाइनअप में है। कि देखिए बैटिंग कार्ड अब तक का। अभी मुसद्दिक जो एक दिन पहले जारहाना बैटिंग करते हुए नजर आए थे। आदिल अमीन जो हैं ये ज्यादा रन्स बना नहीं सके, लेकिन मौके भी उतने नहीं मिले। इससे ये पार्टनरशिप बड़ी अहमियत की हामिल है। दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं, इस पिच के रवैये से वाकिफ हैं और इस फॉर्मेट से भी वाकिफ हैं। ये आदिल अमीन, शाबाश शाबाश नवाज भाई, थोड़ा जा। और शॉर्ट गेंद और तकरीबन हाथ लग चली थी। फील्डर थे सलमान इरशाद, एक जमाने में ऐसी फील्डिंग किया करते थे फास्ट बॉलर। चौका लगाया फरहान ने इस ओवर की आखिरी गेंद पे 58 पे 2। $10.33 the required rate now. Nawaz into his second over. Down the leg side. Still have batting to come. They've got Musaddiq who can strike the ball really well. He's a power hitter. Adil Amin, Asif Afridi all can wield the bat, but I think a lot rests on Iftikhar and how he goes about this chase. Yes, and they will need a big partnership here. Just this one, just starting off, Shadab Khan being hit for a 4. It was a lucky one. Look at that, Salman Irshad on the chase. Could have done a little better there.
smashed through the offside with just a single. Shadab did well to get a hand on that. And that's what Shadab takes a lot of pride in, setting example, the intensity on the field. He keeps talking about the intensity, the attitude, and you definitely see that in him when he's fielding. I didn't carry anyway. No timing. Maybe it was a good thing for Iftikhar. Appreciates the bowling. Come on, Sahibzada Farhan, Iftikhar, this is the pair. This will have to set the platform for KP to break the record against Northern. And you look at form players, and the form player right now is Sahibzada Farhan. He's been brilliant in National T20 this year. He's second on the list of most runs, just behind Babar, and almost in touching distance. Come on, lads. 220 runs. Babar 227, so can maybe take over. And in T20, form is so crucial because batters especially, they need to up the ante, take risks and be able to hit the boundary all the time. So once you're in form, it's easier. Once you're out of form, getting back into form in T20 cricket is quite a task. Don't have the time to play yourself in more often than not. And a wicket, big wicket, form player goes. Nawaz slowing it up. Shadab with the catch. Huge wicket. Sahibzada Farhan walks back. Excellent bowling there by Nawaz, taking the pace off this time. Big wicket. He's doing really well, taking the pace off, making him reach. He was not able to middle that one because of those two reasons. And Shadab Khan taking a good catch. Sahibzada Farhan will have to go. Out for 13, it's 64 for 3. थोड़ा सा अंदर है ना हैरी Well, Asif Afridi walks in after Sahibzada Farhan, well, outfoxed by Nawaz. Wide, slow, smashed straight to Shadab. Shadab was right at the circle as well, so good field placement and good execution by Nawaz. Now Asif Afridi walks in, and his role is just to go out there and attack, waste no deliveries at all. Shadab staying away from the leg side, overcompensating, but saw this in the last game as well. For 4 and 2 sixes, short and sweet, and he'll be looking for the same here. And that's not what KP want, not what Khyber Pakhtunkhwa want. They just want him to go at that strike rate, 144. Doesn't matter if he gets 20 or 30 or 10, but the strike rate is what is important in terms of his role right now. There you go, over extra, starts off with a firmly hit boundary. Yes, his role is very clear, especially against the spinners. That is what he said at the presentation yesterday, that my role is to take on the spinners. And that's what he's done. The very second ball he faces. It was full,
It was in the arc and away for a 4. And for a change, he just rotates strike as well. Now it'll be interesting next over if Shadab, if Asif Afridi is still there and Shadab has the choice of bowling Nawaz. Will he persist with Nawaz? Because it'll be high risk in terms of a left-hander striking towards that leg side. Will also be, well, an opportunity to get a wicket, but there's a decision to be made after this delivery. Down the ground, struck extremely well, goes the distance. Iftikhar just giving us a view of his power. 77 for 3. Bit of a lift-off for Khyber Pakhtunkhwa. Last over went for 13. 10.5 an over now required. Iftikhar, last over, just made sure hit it very, very straight. He's got immense power. It went flat and it went the distance. And a bit of a stare, a bit of a chuckle. You can do that when you hit it out of the ground. And bowling with a lot of pace, Shadab Khan. It was well executed shot by Iftikhar. And overall, I've been impressed with Shadab's captaincy. He thinks out of the box. He has used Haris Rauf in the power play, which a lot of times we have not seen. Now he has brought in a fast bowler. He understands Asif Afridi has a better record against spin. So overall, his captaincy has been impressive. He is not very conventional. He keeps going to his instinct, which is really good. So pace. And pace off. Just a single, yeah. So left arm spinner to Asif Afridi would have been a dangerous call, so he's gone for Salman Irshad. But this just might play into Iftikhar's hands as well. Iftikhar will like pace on the ball right now. Last over he struck Shadab for a massive, well, not a massive, but a flat straight 6. And this should be an opportunity now because pace on the ball, he's into his innings with 13, so he like that little bit of change with the faster bowler. Flicks it into the leg side, just a single. Good bowling there, and yes, Asif Afridi was very quick to give the single, take the single and give the strike back to Iftikhar. Salman doing well. It's going to be important how this over pans out. It's going to be crucial. The partnership has been broken. Sabzada Farhan's wicket was extremely important. So Nawaz has done the job. He can come back later. Now it's up to Salman. Swing and a miss. Good captaincy, good bowling. That's what we want. Test the batter out of their comfort zone. Don't give them what is their strength. Asif Afridi loves bowling, batting against the spinners, and these are the wickets. Israr first, Rizwan second. Good catch there. And this was Nawaz, Shadab, all three batters being caught. Nicely done. Pace off.
First that wide Yorker, now slow one into the pitch. So Asif Afridi is consumed 6 deliveries. Very good cricket from Northern today. We saw they lost the last match. They were not aware of the DLS at that point, lost the wicket, lost the match. But here, on this occasion, this change is really good. Gets it past cover. Just be 2 runs. Asif Afridi, 8 of 7 deliveries. Shadab will be pretty happy with the way things are going at the moment. We know that it can change very quickly. And Salman Irshad looks really good. He had to wait 4 matches before he could get a go, but he has looked really good. Got the wicket of Rizwan, has not conceded many runs. Use of variation is very good. Control is good. Nicely timed, nicely placed. No protection out there, just guided into the gap. Boundary to end the over. It's 85 for 3. Win-loss plot, and Northern are clear favourites by that big gap. It's almost 95% Northern's chance, maybe 90. And Khyber Pakhtunkhwa's chances have slipped quite a bit. The last ball, last over, pace on, but nicely timed. Opened the face, made sure he got bat on it, and he just sped away. If you get that much bat on the ball, you're unlucky if you hit the fielder. And a very timely 4. There were only 4 runs of the first 5 deliveries. They needed a boundary on the last ball. So Asif Afridi providing that. Sohail Tanveer. A poor delivery down leg side, helped on its way. Northern bleeding boundaries. And the first ball of Sohail Tanveer's over goes for 4. It was down the leg side, played well by Iftikhar. And this partnership now looking good, 25 of 14. KP would like this partnership to prolong another at least four overs. Back to Asif Afridi. This should be interesting. Sohail Tanveer is not expressed, so Asif Afridi will fancy his chances. Now, where does he look to hit Sohail Tanveer though? Protection on the leg side. Obviously, there'll be 3 men back. Fine leg will be in the circle. Let's have a look at the offside. It'll be a sweeper and nobody back at mid-off. So the opportunity to go over mid-off and cover. Swing and a miss. And then they understand Asif Afridi's arc is mostly towards mid-wicket area. He can hit it straight to the spinner, but it will be challenging to do that against Sohail Tanveer. So that's the plan Shadab and Sohail Tanveer are looking at. On this delivery, they were able to execute. Slow one hits the fielder, just a single.
just got 13 of 10, but what he has done is made Shadab rethink his plans. Had to get Nawaz off bowling and himself, moved himself to, maybe he's brought back the faster men. Maybe he would have liked them to be bowling later on. Anyway, we've got another game coming. Babar Azam, captain's been in superb form. And just giving his 2 pence about where you should get boundaries. Just talking to Rizwan, exchanging notes. And yes, the spinners will have to come back at some point. But what Asif Afridi has done is that he has taken them out of the attack. And this is the next game, ATF Southern Punjab versus home city Central Punjab. It's going to be, again, back-to-back games for Central Punjab. A good game there. So Northern has 5 bowlers today, and they will have to bring back the spinners at some point. Shot in the air, Umar Amin. Oh, he's dropped it. Simple chance floored. Disappointment all around. Sohail Tanveer almost delivered a punch. 92 for 3. बानवे 3 खिलाड़ी आउट, ये 4 हो सकते थे पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, लेकिन जो कैच ड्रॉप हुआ है उससे जिंदगी मिल गई। इफ्तिखार अहमद अभी भी मौजूद। आखिरी बॉल पे सिंगल भी हुआ। ये थी सोहेल तनवीर की बॉल और इसको सीधा खेल दिया था लॉन्ग ऑन पे। उमर अमीन ने बिल्कुल एक हाथों का कैच चांस स्पिल कर दिया। कप्तान कंटिन्यू करेंगे। यार कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब कैचेस ना गिरे हों। फील्डिंग के म्यार के एतबार से, ख़ास तौर पर जो कैचिंग है उस एतबार से ये सबसे बुरा टूर्नामेंट रहा है हालिया बरसों में। मोहम्मद नवाज ने चंद दिन पहले कैच छोड़ा था, उसका नुकसान हुआ। सोहेब मकसूद ने कैचेस गिराए हैं। चांस हो सकता है ये दूसरी अपॉर्चुनिटी चंद ही गेंदों में। इस बार फिर ड्रॉप कर दिया। इस बार सोहेल तनवीर ने कहा कि उनकी बारी। शादाब खान खुद भी आगे बढ़े थे, विकेट कीपर ने भी कदम बढ़ाए थे और शायद विकेट कीपर पहुंच भी जाते, लेकिन सोहेल तनवीर क्योंकि ज्यादा करीब थे इसलिए ये उन पर गेंद छोड़ दी गई। और गुगली अगेंस्ट टर्न खेलने के लिए गए। ये देखिए बड़ा वक्त मिल गया था, लेकिन आखिर में सोहेल तनवीर गिरा बैठे। फिर से अब कौन है कीपर? सबसे सेफ हैंड्स ग्लव्स के साथ और ड्रॉप्ड। ग्लव्स को लगा गेंद। ये थोड़ा सा टफ था हेलमेट के साथ, लेकिन 3 चांसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं नॉर्दर्न की तरफ से। यार इस बार भी एक फास्ट बॉलर थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट सलमान इरशाद थे। तो पिछले तजुर्बे की वजह से विकेट कीपर दूर तक भागते चले गए। देखिए शादाब एक और विकेट से महरूम रह गए। बहुत ऊपर चली गई। हमेशा आप तवक्को करते हैं कि ग्लव्स की मौजूदगी में विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट कर लेंगे। 4 गेंदों में 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन फिर भी आसिफ आफरीदी चांस देने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कोशिश पूरी की है कि जो पकड़ सकता है पकड़ ले। एक कैच सोहेल तनवीर की गेंद पे, 2 शादाब की गेंद पे। उमर अमीन, उसके बाद सोहेल तनवीर और फिर विकेट कीपर रोहेल नजीर
कैच ड्रॉप कर बैठे। अभी तक विकेट्स कॉलम में 3 ही हैं 96 पर। हेलमेट भी ऊपर कर लिया था रोहेल ने। और कॉटन बॉल का चांस इस बार ड्रॉप कर दिया बॉलर ने अपनी बॉल पर, कप्तान ने। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? 4 कैचेस 6 गेंदों में। यहाँ ये देखना होगा इनकी उंगलियों में क्या लगा हुआ है। यहाँ नॉर्दर्न की जितने भी फील्डर्स हैं, देखिए आप शादाब जो हैं ये दूसरों को दोष नहीं दे सकेंगे। गो कि ये मुश्किल कैच था, खासा लो था, लेकिन तवक्को की जाती है शादाब खान जो पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर हैं, अपनी गेंद पर तो वैसे भी कोई नहीं कैच गिराना चाहता। दाद देनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। और ये इस बार फ्लैट खेल दिया बाएं तरफ लॉन्ग ऑन के फील्डर के, और फाइनली बाउंड्री हासिल कर लिया आसिफ ने। चौके के साथ ओवर मुकम्मल हुआ और साथ साथ केपी की सेंचुरी भी 3 विकेट के नुकसान पे। पिछले 2 ओवर्स बड़े इवेंटफुल हो गए। हमने देखा, ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। 4 कैचेस 6 गेंदों पे आए हों। स्टार्ट करते हैं पहले कैच से, जो कि सुहेल तनवीर की गेंद पे आया था उमर अमीन के पास। ये बिल्कुल हाथों का कैच था। उसके बाद सुहेल तनवीर ने अपनी बारी लगाई, कैच ड्रॉप किया। रोहेल नजीर आए, फिर ग्लव्स लगे बिल्कुल टिप, और फिर शादाब अपनी ही गेंद पर जो है वो कैच छोड़ बैठे। इधर भी फिंगर टिप्स लगी, पोजीशन में भी सही नहीं थे इस कैच को पकड़ने के। तो 2 बार इफ्तिखार और 2 बार आसिफ आफरीदी को जिंदगी मिली। ये हम कह सकते हैं कि रोहेल नज़ीर जो हैं वो निस्बतन मुश्किल कैच था, लेकिन बाकी तीनों कैचेस से वो तो लिए जाने चाहिए थे। और ऐसा नहीं कि यहाँ फ्लड लाइट्स की वजह से कई मकामात पर जैसे फील्डर्स को मुश्किल हो जाती है तो वो गेंद को नहीं पकड़ पाते। यहाँ दिन के वक्त भी कैचेस गिरे। कीपर के लिए ज्यादा आसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास ग्लव्स हैं। हारिस रऊफ अब आए हैं अटैक में। टपाल टीम मोमेंट, और आज अच्छे क्राउड नंबर्स में आया है क्योंकि इतवार का दिन है। तो 2 मैचेस हैं, एंजॉय करेंगे। मौसम भी अच्छा है, चाय भी एंजॉय करेंगे, और कुछ अच्छी क्रिकेट भी लाइंड अप है। सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब के बीच मुकाबला है। बड़े बड़े नाम खेलेंगे एक बार फिर। शोएब मलिक ने कल बहुत एंटरटेन किया अपनी इनिंग्स में। 2 शामें बारिश की नज़र हो गई, डीएलएस मेथड पे फैसला हुआ। आज शायद ऐसी कोई पेशन गोई नहीं है। 102 रन कंप्लीट हो गए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आसिफ। उनका जो ये नंबर उनको अवार्ड किया गया पिछले 2 मैचेस में, वो उसका मकसद ही यही है कि उनको एक तरह से लाइसेंस दिया हुआ है कि वो जाएं और बल्ला घुमाएं। जहाँ और एक इनके आने की वजह यह भी है कि बाएं हाथ से खेलते हैं, और इस तरह जो दाएं बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है ये टीमें अपनाती हैं T20 में मुखालिफ टीम को परेशान रखने के लिए। मिडल ओवर्स में क्योंकि शादाब और नवाज मिलकर बॉलिंग कर रहे थे, तो उस हरबे को नाकाम बनाने की भी ये कोशिश थी आसिफ आफरीदी को भेजना। इन दिनों लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बॉलिंग करने से घबराते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। तो ये नेमत से कम नहीं है अगर मिडिल ऑर्डर को बैट्समैन आपको बाएं हाथ से खेलने वाला मिले इस तर्ज की क्रिकेट में। और ये कीपर को भी बीट कर गई गेंद। काफी ज्यादा बाउंस मिल गया। अंपायर ने कहा 1 फॉर द ओवर, और ये अंपायर का इशारा 22 के 4। रन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा नॉर्दर्न को। उनको मेहनत से हासिल हुए हैं ये रन्स। एक लम्हे के लिए सोचा था शायद कि इस गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से खेल दें, लेकिन फिर बल्ला
हटाने पे इत्तेफाक किया कि वो गेंद खासी दूर थी उनसे, ये दस्तरस में नहीं थी। यहाँ 4-22 के जो रन्स हैं ये शुमार किए जाएंगे, लेकिन देखिए यही क्रिकेट का खेल है। यहाँ मौका था, इस तरह कैचेस के बाद रन आउट का मौका जाया किया। टफ होता है बॉलर के लिए अपने फॉलो थ्रू में वापस जाना, दौड़ के गेंद को उठा के नॉन स्ट्राइकर को मारना, लेकिन अच्छी ट्राई थी। डायरेक्ट हिट होती तो आसिफ को ऑलमोस्ट काफी लंबा वॉक करना पड़ता डगआउट तक। ना आपने अभी जिक्र किया बाएं हाथ से खेलने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात होती है, एक बड़ी प्लस पॉइंट होता है। कोई ऐसा गुजरे हुए जमाने में मिडिल ऑर्डर का बाएं हाथ से खेलने वाला बैट्समैन हो जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया किसी भी टीम का? पाकिस्तान में वसीम राजा बहुत बड़ा नाम थे, और जितनी शोहरत फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उस जमाने में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए उनको हासिल हुई, वो कम ही पाकिस्तानियों को मिली है। और वो गालिबन आपके वन ऑफ द फेवरेट्स भी रहे। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ही टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने छक्कों का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, और शायद वो अपने वक्त से बहुत पहले क्रिकेट खेल गए। वसीम राजा पाकिस्तान के पहले अंडर 19 कप्तान भी थे। उस ज़माने में उनके खेलने का अवामी स्टाइल था। वेस्ट इंडीज़ गए जो दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक था, तो वहाँ रन्स के अंबार लगाए, और जब भारत गए 1979 में तो दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट, लेकिन नहीं। जो आपने बात कही बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। मैं T20 की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा था, लेकिन आपने जो स्टैट्स शेयर किए अच्छा लगा। 109, 3 खिलाड़ी आउट। चाहिए हैं 36 गेंदों पर। भी आपने जिक्र किया वसीम राजा के, एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टार्ट सामने आया कि एक सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 76-77 में खेली गई थी, जिसमें उन्होंने सीरीज में 14 छक्के लगाए थे, और ये रिकॉर्ड काफी टाइम तक इनका रहा था। बहुत अरसे बाद ये रिकॉर्ड टूटा था। T20 में अगर बात करें, जो आपने बाएं हाथ से खेलने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की है, दुनिया में कोई भी हो जिनका नाम आता हो जहन में? डेविड मिलर अच्छे बैट्समैन में उनका शुमार होता है जी, हार्ड हिटिंग करते हैं। यहाँ थ्रो जो है उसको बीट कर दिया था। ऊपर लगा गेंद और गालिबन इनसाइड एज भी था। वो जो 14 छक्कों का रिकॉर्ड था वो 40 साल बाद टूटा था। या इसीलिए मैंने कहा था कि वसीम राजा अपने वक्त से बहुत पहले खेल गए थे। अगर इस दौर में होते तो T20 में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती। फिर बड़ा शॉट और फिर बहुत सारा जान और जोर इस शॉट के पीछे, और आउट फिर भी हो गए। इस बार कैच हुआ है और उन्होंने आसमान की तरफ देखा शादाब ने कि फाइनली 5वीं अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर दी गई है। जी हाँ, रफ्तार कम की, ये इस बार टॉप स्पिनर करने की कोशिश की थी शादाब ने, खासा उन्हें बाउंस मिला। और देखिए अगेंस्ट द लाइन खेलते हुए आउट हुए। पिछले ओवर में भी कैचिंग प्रैक्टिस कराई थी दोनों खिलाड़ियों ने। सदा से अंदाजा लगाया सकता है कि कितना इत्मीनान हुआ है इनको। राहत की लंबी सांस ली शादाब ने। आसिफ ने बनाया 21, 109 पर 4।
Right arm over the wicket. इनका जिक्र कल भी हुआ था, 156 का स्ट्राइक रेट है इनका। इनका रोल यही है इस नंबर पे आने का, क्या आए और बड़े बड़े हिट्स लगाने की कोशिश करें, रन रेट को बढ़ाएं। ये वो विकेट है और इसको अच्छा कैच किया आसिफ ने, आसिफ की ही विकेट हासिल की। आजा नासिर, आराम नाल आजा। मुसद्दिक ऑफ द मार्क हो गए हैं। इससे पहले ये वाहिद खिलाड़ी थे जो 2 बार आउट हुए 0 पर इस नेशनल T20 कप में। लेकिन इफ्तिखार का किरदार कलीदी है। अब इनको सर पर जाना होगा क्योंकि 32 गेंदों में 72 रन हैं। ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा। गेंदों रन्स के दरमियान जो फ़र्क है वो बढ़ता जा रहा है और नॉर्दर्न की टीम को कभी भी शिकस्त नहीं हुई केपी के खिलाफ। आज भी वो फेवरेट लगते हैं ये मैच जीतने के लिए। 15 ओवर्स हो गए, 112, 4 आउट। को बड़ी इनिंग्स देखने में नहीं आई। इफ्तिखार टॉप स्कोरर हैं 26 रन के साथ और जो पहले तीनों खिलाड़ी थे वो सेट होने के बाद आउट हुए और यही फिर मुश्किल होती है कि मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा दबाव आ जाता है जब अब इतनी ज़्यादा गेंदें भी निकल जाएं और इनिंग्स को मोमेंटम भी ना मिला हुआ हो पहले टीम की तरफ से, ख़ास तौर पर रन चेज में। क्योंकि आसिफ अफरीदी आउट हो गए हैं लेफ्ट हैंडर, तो इसलिए मोहम्मद नवाज को अब ले आए शादाब खान। बैटिंग कार्ड देख रहे थे, इसके बाद आदिल अमीन ही रह गए हैं, फिर शाहीन और बॉलर्स शुरू हो जाएंगे, तो ये पेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश यही होगी कि इसको बरकरार रखा जाए। सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई, 2 विकेट्स पहले ओवर में खो के और फिर 13 ओवर में सिर्फ 83 रन बना के 4 आउट हो गए थे नॉर्दर्न के और स्कोर में उन्होंने 98 रन ऐड कर दिया अगले 7 ओवर में। ये 70 रन 30 गेंदों पे बहुत पॉसिबल है। पहला अटेम्प्ट, चांस है कैच का डीप में और आउट। अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है। विकेट्स हासिल होना शुरू हो गई हैं नॉर्दर्न को। इस शॉट में बिल्कुल भी जोर नहीं था और 75 मार्कर पे इसको बड़े आसानी से कैच किया। जहां हैदर अली बाउंड्री लाइन पर थे और एक बार फिर स्पिन के मुखालिफ स्टंप में खेलने के लिए गए। हैदर बर वक्त गेंद के नीचे आए और इस बार उन्होंने शादाब को बिल्कुल मायूस नहीं किया। जीत के करीब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्दर्न की टीम। कप्तान खुश हुए लेकिन मुसद्दिक बिल्कुल नहीं, जो 2 रन बना सके 112 पे 5। आदिल अमीन नए आने वाले बैट्समैन केपी के लिए। ये 2 विकेट्स जो गिरे हैं या के बाद दीगरे, इसने थोड़ा प्रेशर अब डाल दिया है केपी पर।
पहली विकेट गिरी थी मुसद्दिक की पिछले ओवर में, इसी ओवर में इनफैक्ट, और ये डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं हासिल कर पाए। कई बार देखा गया रिजवान पे कितना डिपेंड करता है केपी, या बाबर पे कितना डिपेंड करता है सेंट्रल पंजाब कि अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो हमने देखा कल सेंट्रल पंजाब भी मुश्किलात में आया था, शोएब मलिक ने उनको निकाला। आज भी इनको ज़रूरत है किसी ऐसे बैटर की जो इनको ये रन्स दिलवा सके। किस पे डिपेंड कर पाएंगे? इफ्तिखार अहमद के पास शोएब मलिक की तरह वो तजुर्बा है और माजी में इन्होंने खुद को मनवाया भी है, लेकिन ये तो कहना होगा कि क्योंकि ये बिल्कुल ये आखिरी दिन है यहाँ, तो पिचेस जो हैं ये कतरे थकी थकी लग रही हैं। कल भी हमने देखा कासिम अकरम ने आकर सिंध की 3 विकेटें हासिल कर ली थी, गो के शॉट सिलेक्शन का उसमें अमल दखल था, और आज भी स्पिनर्स जो हैं ये प्ले में आ रहे हैं। बाहर निकल के बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है, ये गेंद हारिस रऊफ के ऊपर से निकल जाएगी। 6 रन्स। इफ्तिखार के बल्ले से अगर शॉट निकले तो बहुत कम बार ऐसा होगा कि वो बाउंड्री के अंदर गिरे। यहाँ खूबसूरती के साथ खेला, कदमों का इस्तेमाल करते हुए। ये देखिए गेंद टर्न हो रही थी लेकिन अक्रॉस द लाइन नहीं गए, और यही इनकी कामयाबी का राज था। ताकतवर स्ट्राइकर हैं इफ्तिखार अहमद। अच्छा जरूरत थी छक्के की। अभी 14 की औसत दरकार है। एक बार फिर, इस बार और आगे खेल दिया इसको, उससे भी लंबा छक्का इफ्तिखार का। बैक टू बैक मैक्सिमम। जी हाँ, बाला बाम गेंद गई यहाँ दूसरी मंजिल पर। इफ्तिखार अहमद जानते हैं औसत बढ़ती जा रही है, उनके पास ज्यादा वक्त और गेंदें नहीं हैं, इसलिए वो हाथ खोलते हुए नजर आए। ये देखिए गेंद मीडिया सेंटर के सामने से होती हुई आई टीवी कैमरामैन के पीछे। इफ्तिखार के नेशनल T20 में 64 छक्के हैं, इन दोनों छक्कों को मिलाकर। इनसे ऊपर जो है 4 बैट्समैन और हैं, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है इनकी डोमेस्टिक T20 में, और अभी भी इनसे काफी उम्मीदें हैं केपी को। आखिरी गेंद, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 55 अब चाहिए हैं 24 गेंदों पर। नीचे 55 needed of the final 4. Iftikhar last over has stepped it up. Couple of massive hits. He's 40 not out, and it's very, very close. Smashed one straight off Shadab. This is last over where he's come down the track and launched one. And this one probably even better. Powerful striker, and he's making sure that Khyber Pakhtunkhwa stay up with the rate. 13.75 required. We've got a game on now. Slower delivery, short ball, slower one. That's clever bowling. Dot ball. They'll do anything at the moment, I think, to get a dot ball. No pressure on this man. He's got 1 over to go. 1 ball into his final over. His numbers are good so far. He's the man that picked up Mohammad Rizwan, so that was a key wicket. 55 from 23. Just need to mix in a big over in the next 2, and they will be flying here. That's going to be a wide.
So the first two deliveries, he's gone short and into the pitch. And the field set suggests that protection is for the ball pitched up. Yeah, with the two men back. Long off, long on back. One short again. It's gone for the slower bouncy, and that's a bouncer, I should say, and that's a wide. So he's exhausted that option of bowling short. That's another wide. He's gone for a short ball, then a short ball that was wide, and then now he's bowled another short ball. So now he'll have to be further full. Or pace off. Straight down the ground, didn't get all of that. They should be able to come back for two. No. Settle for one. That's good fielding. Yeah, it's an exciting finish. And now it's up to Adil Amin to get a boundary in this over. Iftikhar, well, he did that a couple of times last over. Now it's up to Adil Amin. He's quite capable. With pace on the ball, with third man of fine leg inside the circle, he's got to be on the stumps. Pace off the ball, drags that on the onside. It's on the bounce though. Ralph tidies up, just one. He's got a good arm. Don't want to test that. Doing well. The extras don't help the matter, but every time he's had those two wides, he's come back well straight afterwards. So that's fine. Just got to make sure he finishes the next three. Beautiful shot, straight down the ground. That's as straight as a die. Exceptional stroke, that one. Set himself up. It was a full delivery, and he knew as soon as he hit it. Back in the crease, waiting for that one. Wow, that's a terrific shot. So suddenly things have changed now. So 10. And now we come to the two extra balls that he had to bowl because of the wides. Deep in the crease, underneath it. That's what the batsmen look for at this stage. Two extra balls now. Slower delivery, squeezes that away. That's probably going to go. Yes, that's another boundary. Brings up 50. 50 off 31 balls. 4 sixes and 2 fours. What a knock this is. 16th 50 in T20 cricket, and this is a special one. It just seems in the zone. Sulman Irshad just outside off. It's timed away. The deep fielder was quite square. No protection behind point. Placement excellent. Exceptional batting. This is a really important delivery. Both men back again inside the circle. That's a very good ball. Nicely bowled. Third man of fine leg were up, and it was the perfect delivery. Can't do much with that, but 15 runs off the over, 17 gone, 142 for 5. Time to look at the broadcasters. There's the TV boys and streaming. Now, if you want to go to the YouTube channel and also the Facebook page,
PCB YouTube and PCB Facebook page. You can watch high definition, HD quality. Pictures are crystal clear. Really enjoy this coverage. This is going to be a tight finish. Jump on now. Tell your mates, jump on. Watch this. Haris Rauf. Oh, he's hit that superbly, and that's gone for 6. That is a beauty. What a way to start the over. He's in the zone, that's for sure. Haris Rauf goes length. Cannot do that. That has been smoked. Big time. What a shot. Magnificent. 34 from 17 now. That's what they need. Oh, and he's gone again. Has he gone far enough? Perhaps not. Catch has been taken. Haris Rauf has got the big celebration out. You're hard in the mouth. They've caught one on the fence. And it was a big wicket. Big occasion this. It's in the air right there. All northern players hard in the mouth. Asif Ali takes the catch. Celebrations. Haris Rauf has his man. Pendulum swings again. Iftikhar out for 58. 148 for 6. Afridi, Shaheen Afridi, has arrived at the non-striker's end. Credit to Haris Rauf. Both those deliveries were pace off. The second ball was slower still than the first. Scooped and gone. What a catch. That is a beauty. Sahal Tanvir has taken that catch. That's 2 in 2. Now they're catching them. They've floored quite a few, but this one, Sahal Tanvir, has plucked that out of the sky. Full stretch. That's a great catch. He is a very athletic fielder, is Sohail Tanvir. Adil Amin out for 2. It's 148 for 7. Two wickets in 2 balls. Haris Rauf now 3 for 25. And guess what? There's the first. Caught on the fence after going for 6 the ball before. It's a good catch that from Asif Ali. And this one by Tanvir. Captain enjoyed it as well. They've got their noses in front now. So he's on a hat-trick. Haris Rauf. On a hat-trick, here we go. Oh, he keeps that out as Imran Khan tried the stumps. Oh, almost a team hat-trick, not too far away. A
Face off again, trying to just flip this over. The option was right, but Sohail Tanveer in the way. Timed his jump to perfection. Old Imran just got bat on ball and got down the other end. He's saying to Shaheen Afridi, right, your turn. 7 off the over so far. 2 balls left in it, 2 wickets in the over. 6 the first ball. Let's not forget that. What a great comeback from Haris Rauf. And a couple of fielders. Down to third man. Held his nerve. Pace off, length delivery, but made sure it was slow. Good catch. Asif Ali held the catch to Shadab's delight. Has been a rarity tonight. He had plenty of time to think about it as well. As was coming towards him. He's an experienced player and he's a very good, accomplished fielder and catcher, thankfully, for the boys in red. Down the ground. Has it gone over the top? Yes, it has. 4 runs it is. And 12 runs off that over with the last ball. 18 gone now. 154 for 7. That's the end of Rauf. 3 for 31. Come 28 off 12, 3 wickets in hand. That's what KP need to do. Nawaz has still got 1 to go. 3 overs, 2 for 26, his return. So that's going to be interesting. Tanveer. This is a crucial over, this one. 28 required in 12 balls. This is the big over. Big swing and a miss from Afridi. Last ball, swing over mid-off. Shadab was livid. He was absolutely livid. See the reaction. He probably wanted Haris Rauf to bowl short. Nothing in that zone. But it kept on for a while, actually, that little... what can I call it a discussion? Maybe one-way conversation. So dot ball, first one. Second one's a dot ball as well. Yeah, very experienced Sohail Tanveer, just giving him no pace at all. It's almost bounced twice. That delivery so slow. And he knows that Shaheen Shah Afridi will be swinging to leg. Really taking all the pace off. Boys in blue, Northern, 89%. That's what they're saying. Down the ground. Oh, that's gone for 4. Mix up. That's gone for 4. Sohail Tanveer can't believe it. Neither can Shaheen Shah Afridi. He just flicked this down the ground. He's timed it pretty well, pretty decently. And he's running. He wants 2. And to his surprise and Sohail Tanveer's surprise, nobody's able to cut that off. Right in the gap. Yeah, I think they thought each other were actually going to be getting the big dive in or something at the end there. Yeah, there's a reaction from the bowler. 24 required off 9 before that delivery. Scrambling. They're going to look to come back for the second. No. Just the 1.
So we were presuming that Nawaz is going to bowl the last over, a bit of spin to finish. I don't see anyone else starting to loosen up at all, so it looks like that's what's going to be the plan. Shadab is busy chatting to the bowler all the time. He's intent on making sure this one's nice and tight so that the last one is going to be a bridge too far. And there he is, dry throat, dry mouth. Sent back by Afridi. Good stuff from Tanvir. Another dot ball, so that's a third dot ball in the over, and another one's just gone for a single. Yeah, look at boundaries now. So if Sohail Tanvir maybe goes for one, and then you're looking at least 4 hits to the fence. And that's what Shadab is on about. He wants Sohail Tanvir to finish off this over and leave Nawaz with something over 20 at least. Sweeper. 5 overs gone. No, sorry, 5 runs off the over. 19 overs gone. 159 for 7. So 23 off 6, that's what they need. Looks like we do have a bit of medium pace. After all, didn't see the message to warm up at all, and I didn't see him loosening up, so this might have been a late call. Ali Imran has been asked to bowl some medium pace. Obviously, Shadab Khan, who's chatting to him now, is saying, are you okay with this? Obviously, he believes that the spin would have been just a little bit too risky. .23 required to win. And there's an edge, and it's gone over the top for 4. 19-5 now. The short ball straight away. You know that Shaheen Shah Afridi can strike the ball if you're pitching it up. So he started off with the short ball, and you run the risk always with that top edge sailing away. Tanvir certainly did his job in the last over, keeping it down to a minimum. 5 runs only off that over, so over number 19 was good. We're 1 ball into this, and it's already gone for a boundary. That might be a wide. That is a wide. Short ball's gone too. Yeah, he's testing out the middle of the pitch, and he's getting some bounce, but it's not the way to go. This should be interesting now. What length does he bowl? He's tried out that short ball. He's gone for a 4, now wide, so he's just bowled 1 delivery. Shaheen Shah Afridi is coming at him. 2 men are back on the fence straight, long off and long on in position. Oh, it's a big swing and a miss. Got to make contact. Got to watch the ball and make contact. And it seems that he's going to be into the pitch always. Again, this time took a little bit of pace off that. Yeah, it's not a good swing, I'm afraid. Yeah, he's a bowler, that's for sure, but it's expected to do that sort of work with the ball and make all the carnage, create all the carnage with the ball. But there are times when you need it to bat. You've got to make sure you do the work with the bat and the nets too, to make sure you can help out on the leg side. Got to come back for the second. He's got no choice but this, I don't think, and safely home. Long legs.
16 off 3. 2 6s and a 4. That's what's needed. The cyclone going around named Shaheen. Can the cyclone Shaheen come to Rawalpindi Stadium right now? He did it with the ball. Now he's required to hit 3 boundaries. Bottom's got to be a real big boundary too. It's not going to be the case. That's a dot ball. So Ali Imran is very pleased, I'm sure, right now with the work that he's done. So now, Hayes, I'm very interested with when you come to a situation where the bowling unit or the bowling side is going to win if there's 2 legal deliveries. Why don't you just stand and bowl? I'm never too sure. You still run the risk of overstepping, or with your long run-up, you just stand there and bowl and win the game. That's a batsman speaking if ever I've heard. So 2 balls to go in this match. That one dribbles out to the sweeper on the leg side, just a single. So Northern can be very pleased with this. At one stage they didn't look in the hunt actually when they were batting, and suddenly getting 100 runs off their last 7 overs was simply outstanding. Really was a magnificent performance. Some superb batting. And KP have never won a match in the National T20 Cup against Northern. That is going to continue too. That's in the air, should be taken. The last ball, and it is taken. So that is the end. Smiles from the captain eventually. He was getting concerned, there's no doubt about it. At one stage he didn't want to bring the spinner on just in case. Ali Imran had to absorb some pressure, and he did a really good job. But Northern get up by 14 runs, and that's a really good victory against KP. Shadab's done well, although his side didn't catch too well, but it's overall, it's a performance he'll be proud of. Did well with the bat, and then his changes with the bowling was spot on. And having batted first, they got to 181, and they defended really well. 58 from Iftikhar gave them a lot of hope. That middle period where Khyber Pakhtunkhwa came back at Northern, but it was all too many for them in the end. Yeah, and even when he was playing so well, and it was superb, it was still a bridge too far at that stage. Someone had to really go deep, and unfortunately for KP, Iftikhar didn't do that. The bowling and the partnerships are always interesting to check out. The bowling, if you want to have a look at some of the class acts here, Haris Rao, 4 overs, 3 for 31, going at just over 7.5. So that's really good work from him. And he bowled briskly. He was hitting very close to 150 k's per hour right from over number 1 today. And that was very, very impressive stuff. And had the boys hopping around a little bit. Nawaz 2 for 26. He didn't complete his 4-over spell because the captain decided to go for a seam bowler. Shadab, as the skipper, 1 for 33, going into to shade over the 8 mark. And Tanvir at the top, 4 overs, 12 dot balls, none for 27, and going at 6.75. So that's tidy as well from Sahal Tanvir, back in the lineup after a rest in the previous game. Yeah, having been put into bat, Northern got to 181 largely because of that 50 from Nawaz of 34 deliveries. And then Khyber Pakhtunkhwa, they couldn't reach that 181, lost by 14 runs. Iftikhar with 58, Haris Rao 3 for 31. Righto, what happened with the table? Let's see if there's any big movement there. Sind are still at the top, of course, with their 8 points and their good net run rate. Khyber Pakhtunkhwa, 8 points, sitting at number 2. Net run rate is tidy also. Northern at number 3. So also with 8 points, so that's 2 points for them. And they've taken just a little bit of a gap there on home city Central Punjab. But Central Punjab are playing in the next game. And Balochistan
and also ATF Southern Punjab bringing up the rear. They haven't got any victories at this stage, no points. Okay, we're going to take a quick little break. When we come back, we're going to have the presentation. प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। और आज नॉर्दर्न ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा, 5 मैच जीत चुके हैं केपी के अगेंस्ट और आज उस रिकॉर्ड को बरकरार रखा। सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे मिस्टर मोहम्मद सईद को ऑन बिहाफ ऑफ होममेड अप्लायंसेस। आज सबसे पहले दावत दूंगी प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज को, जिन्होंने 51 रन बनाए 34 डिलीवरीज में और 3 ओवर करा के 26 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। ब्राइटो पेंट्स फैन ऑफ द मैच के लिए पहले बॉल साइन करेंगे और उसके बाद पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी और कैश अवार्ड 25,000 वसूल करेंगे।
नवाज, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कंसिस्टेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। शादाब के साथ भी नज़र आ रहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ओवरऑल टीम एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारा टीम एनवायरनमेंट है, काफ़ी मतलब लड़के हम एक दूसरे को काफ़ी मतलब सालों से जानते हैं ओबियसली, और एक साथ रहते भी हैं मोस्टली पिंडी के जो लड़के हैं, तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है हमारी, और ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी। चलें जी, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सबसे पहले हम बुलाएंगे लूजिंग कैप्टन को, मोहम्मद रिजवान। रिजवान, आपको लूजिंग कैप्टन कम ही देखने को मिलता है आज। थोड़ा सा ओवररेट में भी मसला था, उसके अलावा क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से ओवररेट का तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब से अंपायर से हम पूछते रहे तो उसने कहा कि सब कुछ लेवल है। अभी पता नहीं एंड में क्या होता है, मगर बहरहाल अगर आप क्रिकेट की बात करें ओवरऑल पूरे मैच की, तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से जहाँ पे नवाज़ और शेडी ने वहाँ पे पार्टनरशिप लगाई वहाँ से एक्सेप्शनल था, और उनकी बॉलिंग अच्छी थी, पर मेरे ख्याल से उनकी फील्डिंग और हमारी ओवरऑल क्रिकेट जितनी भी थी इतनी तगड़ी नहीं रही, जिस वजह से उनके सिर्फ एक दो एक्सेप्शनल थे जिनकी वजह से रिजल्ट उनके हाथ में चला गया। और टॉप ऑर्डर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से परफॉर्मेंसेस हैं, मुसद्दिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और उस पर क्या कहेंगे? लोअर ऑर्डर आज मोहम्मद वसीम भी नहीं खेले, कोई इंजरी है उनको? देखिए जी, वसीम को रेस्ट दिया गया हुआ है, जिस तरह हमें मैसेज दिए जा रहे हैं कि सबको यूटिलाइज़ करना है, सबको चेक करना है। और बाकी जहाँ पे मिडल ऑर्डर की बात है तो इफ्तिखार फॉर्म में है, मुसद्दिक है, चल रहा है, उसके अप एंड डाउन चल जाते हैं, आदिल अमीन है, उसके भी अप एंड डाउन चल रहे हैं। इतना कोई बड़ी रनों से नहीं हो रहे हैं, मगर बहरहाल में हमारा काम है कॉन्फिडेंस देना और उनको यहाँ पे शो करवाना, क्योंकि एक तगड़ा टूर्नामेंट यहीं से फिर प्लेयर आप ऊपर आते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो वही कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, और बाकी इनके हाथ में कि जहाँ तक इनकी मेहनत वाला रिजल्ट देगा उनको। चलें जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू। थैंक यू जी। और इसके बाद हम दावत देंगे आज के विनिंग कैप्टन शादाब को, जो कि होम मेड अप्लायंसेस मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर भी हैं। कैश अवार्ड 15,000 रिसीव करेंगे और उसके बाद हमसे बात करेंगे। शादाब, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और एंड तक 1-2 ओवर्स तक भी लग रहा था, पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा। ओवरऑल क्या समझते हैं, कैसी परफॉर्मेंस? आपका भी टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर पे ज़रा प्रेशर ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अच्छी गेम देखने को मिली है, जो कि क्राउड आया था तो वो ये गेम अच्छी गेम देखने को आता है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरह का शेन ने क्वालिटी ओवर किया था, उसके बाद हमने जिस तरह रिकवर किया बैटिंग में, तो जिस तरह के नवाज़ माशाल्लाह फॉर्म में है, माशाल्लाह 3-4 मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो ये हमारे टीम के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह नवाज़ अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे भी जिस तरह की फॉर्म लगी है, तो पाकिस्तान टीम के लिए हेल्प है, और जिस तरह हमारी टीम के लिए वो हेल्प कर रहा है। और वाकई बहुत अच्छी फॉर्म में सारे स्पिनर्स हैं, हमें काफ़ी उम्मीद है वर्ल्ड कप के लिए। और बस एक चीज़ आखिर में, अली इमरान को ओवर दिया, उसके पीछे अपनी थिंकिंग बताएं। बिल्कुल, क्योंकि वो ग्रिप हो रहा था, फास्ट बॉलर का अच्छा ग्रिप हो रहा था, तो थोड़ा मुश्किल था। जिस तरह वो ऑलराउंडर, वो एज ऑलराउंडर खेलता है, वो उसको स्टार्ट में मैंने बॉलिंग नहीं दी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, उसको भी कॉन्फिडेंस था। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं, लेकिन जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है एज ए फील्डिंग यूनिट, हमें जीतना नहीं चाहिए था, लेकिन बॉलर्स ने हमें क्रेडिट देने पड़ेंगे जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन जिस तरह के हम लास्ट 5-6 मैचेस में हमारे कोई 14 से 15 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो उससे क्योंकि हमारी बॉलिंग और बैटिंग अच्छी फॉर्म में है, तो अभी तक हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर प्रेशर सिचुएशन में हमारे ऐसे फील्डिंग लैप्सेस होंगे तो वो नुकसानदेह होगा। बिल्कुल, इफ्तिखार को 2 बार ड्रॉप करके मैच जीते हैं, पर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी टीम को। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से बस इतना ही। Now we got another game. We got another game that's coming our way now. ATF Southern Punjab versus Home City Central Punjab, and you can join us very shortly at 7:15 local time. That is minutes away. Don't miss us. बॉल्ड कर दिया शाहीन अफरीदी ने। Tries to catch it, and that is going to be out. Finally, Nawaz with a big hit.
कीपर सबसे सेफ हैंड्स ग्लव्स के साथ और ड्रॉप। चांस है कैच का और आउट।